मोहित शर्मा जो जयपुर के हैं और आर्ट ऑफ लिविंग से जुड़े हुए हैं, तो छोटा सा इनका ब्रीफ डिस्क्रिप्शन सुन लेते हैं, फिर आगे चलते हैं। Dr. Mohit Sharma completed his graduation MBBS from SP Medical College Bikaner, Rajasthan, in the year 2003. Then he served as a medical officer in the government of Rajasthan. He completed his post-graduation MS in general surgery from the same institute, and then in continuation he cleared super specialty entrance for cardiovascular and thoracic surgery. He completed his super specialty MCH in cardiac surgery in the year 2015 from SMS Medical College, Jaipur, Rajasthan. During his career curriculum, he has published more than 40 outstanding research papers in various national and international journals. He has worked as assistant professor and head in the depth of CTVS, cardiothoracic and vascular surgery, at JLN Medical College, Ajmer, Rajasthan, and Government Medical College, Kota, Rajasthan. At present he is working as Associate Professor in the Department of Cardiovascular and Thoracic Surgery, SMS Medical College, Jaipur, Rajasthan. He has been worked as an integral part of core team of first heart transplant in government setup in Rajasthan. He has demonstrated a strong work ethic and enthusiasm to learn and to teach as well. He has also delighted the Department of Pediatric Cardiac Surgery, Fortis Escorts Hospital, Jaipur, Rajasthan, as associate consultant with his excellent clinical competency in pediatric intensive care and congenital cardiac surgery. Despite his professional competency, because of his inclination towards spiritual growth, he is also working as Art of Living faculty and teaching happiness programs, Sahaj Samadhi and Yoga Level 1. His sessions related to science and spirituality has been conducted to the Premium Institutes of India. One of his researches, Effect of Sudarshan Kriya Yoga on Cardiovascular Parameter, was published in Heart India Journal and cited in so many ongoing researches. He has conducted sessions 1, AIIMS Jodhpur, 2, SMS Medical College, Jaipur, 3, Manipal University Jaipur, 4, IT Chennai, 5, Fortis Escorts, Jaipur, 6, Mahila, Janna Chikitsalya, Jaipur, 7, JLN Medical College, Ajmer, 8, District Medical Associations of Rajasthan Sikar, Karoli etc. 9, Invited guest lectures on stress management RSEB, Rajasthan State Electricity Board, Jaipur. ये था हमारे आज के मेहमान का छोटा सा परिचय। अब मैं आपको उनके साथ मिलाना भी चाहूंगा। डॉक्टर मोहित, आपका बहुत बहुत स्वागत है आज के इस प्रोग्राम में, जिसका हेडिंग हमने रखा है दिल के रोग और योग। तो परिचय तो आपका हो गया अच्छे से। अब कुछ प्रश्नों को हम ले लें, यदि आपकी अनुमति हो तो। बिल्कुल, नमस्कार, जय गुरुदेव and welcome to everyone. It's a very knowledgeable session. Tripurari ji is doing really a great job related to that. And बिल्कुल आप प्रश्न लीजिए और इसको अपन और इंफॉर्मेटिव करेंगे। जो सामान्य क्वेश्चंस हैं, जनरल आस्पेक्ट के जितने क्वेश्चन है रिलेटेड टू देयर हार्ट हेल्थ, डेफिनेटली all questions must be clear in each and every aspect, so that जो भ्रांतियां अभी हमारे सोसाइटी में हैं, especially on the social media, wrong informations are, so many wrong informations are there. We will clear all about that. पूछिए। सबसे पहले तो मैं हम सारे दर्शकों को बता दूं कि इस प्रोग्राम का उद्देश्य सामान्य जानकारी प्रदान करना है। यदि आपकी कोई स्पेसिफिक कंडीशन है तो कृपया आप अपने चिकित्सक की ही सलाह से कार्य करें। यहाँ पर दी जा रही जानकारी एक सामान्य जानकारी है, उसको उपचार ना समझें। अपनी कंडीशन को अपने डॉक्टर से ही सलाह करके आगे बढ़ें। मेरा पहला प्रश्न है, डॉक्टर साहब, ऐसे कौन से लक्षण हैं जिससे कि एक स्वस्थ व्यक्ति को पता चले उसे दिल संबंधी समस्या है और डॉक्टर के पास जाना चाहिए? ऐसे कौन कौन से फिजिकल लक्षण है या क्या है जिसके बाद उसे लगता है कि नहीं, मुझे अभी इमीडिएटली डॉक्टर से मिलना चाहिए? देखो, सबसे पहले इस बात को हम समझते हैं कि हमारे बॉडी में कुछ वाइटल ऑर्गन्स हैं, जिनमें से एक है हार्ट, हृदय। अब ये हृदय अगर डिसफंक्शन में आ जाए तो क्या क्या हो सकता है? सबसे पहला, सांस फूलेगा आपका, एंड इट्स ऑल रूटीन। आप थोड़ा सा भी एक्सर्शनल वर्क करेंगे, सांस फूलना। दूसरा कॉमनेस्ट कंप्लेंट होता है चेस्ट पेन।
अब इस चेस्ट पेन को लेकर के सबसे बड़ी समस्या ये आती है कि कुछ लोग कहते हैं कि साहब ये गैस का दर्द है, दिल का दर्द है, हाउ वी कैन आइडेंटिफाई और वी कैन डिफरेंशिएट। चेस्ट पेन का मतलब होता है ये एरिया है ना, यहाँ इस एरिया में, और वो कहीं भी हो सकता है, राइट लेफ्ट, शोल्डर पेन हो सकता है, रेडिएट कर सकता है पूरी आर्म में, लेफ्ट आर्म में, राइट आर्म में, जॉ में। तो इसको भी हम थोड़ा सा अलग रख लेते हैं, चेस्ट पेन को सेपरेट, इसको डिस्कस करेंगे। उसके बाद होता है अनियंत्रित दिल की धड़कन। जैसे कभी कभार किसी एक समय पे आप शांत बैठे हैं लेकिन आपको अपने दिल की धड़कन सुनाई दे रही है, या अनियंत्रित या अनियमित रूप से तेज गति से दौड़ रही है, जैसे रेलगाड़ी छुक 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 स्पीड से दौड़ती है, ऐसे आपकी अनियंत्रित या अनियमित दिल की धड़कन, और तेज पसीना आ जाना, घबराहट, बेचैनी, और रात को नींद में भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बेचैनी होकर के उठ जाना, ये कॉमन सिम्टम्स होते हैं जो इंडिकेट करते हैं हृदय रोग की संभावना को, हृदय रोग क्यों नहीं, हृदय रोग की संभावना को। अब इनको एक एक करके सारे सिम्टम्स को हम ले लेते हैं, बड़े आसान है, ताकि हम ये कम से कम, अब आप कहोगे ये सारे सिम्टम तो हमें भी दिखाई देते हैं हमारे भीतर, तो क्या हम हृदय रोगी हैं? नहीं, इट्स नॉट पॉसिबल अंटिल प्रूव्ड अदरवाइज। तो अब इसको प्रूव कौन करेगा? सबसे पहले हम लेते हैं सिम्टम चेस्ट पेन। रूटीन में चेस्ट पेन जो होता है वो चेस्ट का एरिया पूरा, ये डायफ्राम से ऊपर और गर्दन के नीचे, इसको हम कहते हैं छाती का एरिया। यहाँ कोई भी दर्द हो, वो पहली पॉसिबिलिटी होती है मस्कुलर पेन, यानी मांसपेशियों का दर्द। जैसे जब भी कोई व्यक्ति अगर पिन पॉइंट करके आपके पास आए, एक अंगुली से पॉइंट करे कि यहां दर्द है साहब, इसका मतलब वो कार्डियक नहीं है। यहाँ क्लियर करते हैं कैसे। क्योंकि जो कार्डियक पेन होता है वो होता है वेग, वेग का मतलब होता है जनरलाइज्ड, और इस सीधी नली का जो आप कह सकते हो, एक सीधी लाइन अगर मैं खींचूं यहां पर, तो यहां पर होगा, कांस्टेंट होगा, मोर देन हाफ एन आवर होगा, और किसी दवा से रिलीव नहीं होगा, और दर्द के साथ जलन और भारीपन होगा। ये तीन चार चीजें आप समझ लीजिए, जलन, दर्द, भारीपन, पसीना और घबराहट, और इस एरिया में। और ये दर्द आपके इनो पीने से या किसी एंटासिड के लेने से नहीं जाएगा। जनरली गैस का अगर दर्द होता है तो वो इंटरमिटेंट होता है, थोड़ी देर हुआ फिर नहीं हुआ, फिर थोड़ी देर हुआ फिर नहीं हुआ, 2-5 मिनट दर्द हुआ फिर रुक गया, फिर आप घूमे फिरे बैठे, फिर आपको दर्द का अनुभव। इसका मतलब जो रुक रुक कर दर्द हो रहा है, पॉसिबिलिटी है कि वो कार्डियक पेन नहीं है। नाउ द सेकंड पॉइंट, जब भी ये पेन हो रहा हो और आप थोड़ा सा भी एक्सर्ट करें तो ये पेन एग्रेवेट हो जाए या बढ़ने लग जाए। कुछ लोग मॉर्निंग वॉक पे जाते हैं, अक्सर मॉर्निंग वॉक पे जाते हैं, तो उनको कई बार ऐसा महसूस होता है कि जब वो मॉर्निंग वॉक पर गए, थोड़ा सा चलने के बाद उनको दर्द उठा, और जैसे जैसे उन्होंने और चलना शुरू किया दर्द बढ़ा, फिर उनको बैठना पड़ा। इसका मतलब एंजाइनल पेन है, और इसको रूल आउट करना जरूरी है। ये ट्रांजिएंट हो सकता है। सपोज एक व्यक्ति जो रेगुलर मॉर्निंग वॉक पे जाता है, मॉर्निंग वॉक पे गया, उसको थोड़ा भारीपन लगा, दर्द भी नहीं, खाली भारीपन लगा, उसको लगा बैठ जाता हूं, थोड़ी देर बैठे, एंड देन अगेन स्टार्टेड वॉकिंग, तो उसको वही दर्द वापस हुआ, और अब वो दर्द बढ़ गया पैदल चलने से, और बढ़ के अपनी बाएं हाथ की तरफ रेडिएट करने लगा। इट मींस इट इज कार्डियक पेन, और एंजाइनल पेन मस्ट बी रूल्ड आउट बाय इन्वेस्टिगेशंस। तो ये चेस्ट पेन की कहानी। चार तरह के पेन होते हैं जो इस एरिया में होते हैं, मोटे मोटे चार पेन, बड़े इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हो। पहला होता है हृदय का, जिसको हम कहते हैं हार्ट अटैक हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, फर्स्ट मोस्ट उसको मान लेते हैं कॉमन। द सेकेंड इज कोलेसिस्टाइटिस एंड पैंक्रेटाइटिस। कोलेसिस्टाइटिस क्या होता है? हमारे पित्त की थैली में सूजन आ जाए, या हमारे आमाशय के नीचे एक ग्रंथि होती है अग्नाशय, उसमें सूजन आ जाए, वो भी यहीं दर्द करेगा और जलन करेगा। कोलेसिस्टाइटिस, पैंक्रेटाइटिस, इनफैक्ट अपेंडिसाइटिस या ईसोफेजाइटिस। ये ईसोफेगस है भोजन की नली। इस भोजन की नली में तेलीय खाना खाने से, नमकीन खाने से, कचौरी समोसे बहुत बढ़िया तबीयत से खा लेने से जलन या खट्टी डकार आ सकती है, जो आपको हृदय के दर्द के साथ रिजेंबल कर सकती है। क्लियर हो गया? इसके अलावा और कोई तरह का दर्द नहीं होता जो आपको डिफरेंशियल डायग्नोज करना हो। एक दर्द होता है जब कभी ये सर्दी का मौसम गया और गर्मियां आई, या गर्मी का मौसम गया और सर्दियां आई, जैसे स्पेशली होली और स्पेशली दिवाली। ये दो ऐसे सीजनल वेरिएशंस होते हैं जब मौसम ट्रांजिएंटली चेंज हो रहा होता है। इस स्थिति में लोग खांसी करते हैं। ड्राई कॉफ के वक्त, यानी सूखी खांसी करते वक्त, जब आपको बलगम नहीं आ रहा, बहुत बुरी तरह से जब आप खांसते हैं, तो छाती की सारी मांसपेशियों में जकड़न हो जाती है। वो जकड़न भी आपको चेस्ट पेन होता है, जो पिन पॉइंट पेन होता है।
जैसे यहाँ हो रहा है, यहाँ हो रहा है, और पेशेंट क्लासिकल बोलेगा कि साहब यहाँ दर्द है, यू कैन रूल आउट इजीली कि कार्डियक नहीं है, तो उसकी मसल्स में स्पाज्म होने के कारण पेन हुआ। तो अब चेस्ट पेन क्लियर है, आई थिंक इट्स अ बेस्ट एक्सप्लेनेशन नाउ। हो एग्जैक्टली गया साहब, एग्जैक्टली। अब दर्द हो गया। अब इस दर्द को हम कैसे रूल आउट करें साहब? हमको दर्द भी है, कांस्टेंट है, हाफ एन आवर से ज्यादा है, और किसी भी एंटासिड से रिलीव नहीं हुआ है, और अब पूरा सस्पेक्ट हो रहा है कि साहब कार्डियक हो सकता है। नंबर वन, देन इमीडिएटली गो फॉर अ कंसल्टेंट्स ओपिनियन। सबसे पहला काम होना चाहिए किसी पढ़े लिखे के पास में। उसको यूट्यूब पर मत सर्च करने लग जाना कि मुझे छाती में दर्द हो रहा है तो अब क्या करूं। तो ऐसी कोई गलती कर बैठोगे तो पॉसिबिलिटी कहीं ना कहीं प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है। सो इमीडिएट हैव कंसल्टेंट ओपिनियन और गेट ईसीजी डन। ईसीजी पे भी कई बार, सो मेनी टाइम्स क्लियरिटी नहीं आती है, तो एक टेस्ट होता है जिसके बारे में पहले भी मैं बता चुका हूँ। ट्रॉप टी या ट्रॉप आई टेस्ट होता है, जिसमें आप ब्लड की एक बूंद खून लेंगे, उससे इमीडिएट आइडेंटिफाई हो जाएगा कि ये प्रॉब्लम कार्डियक है या नहीं है। मान लिया ईसीजी नेगेटिव है, मान लिया ट्रॉप आई भी नेगेटिव है। कई बार होता है ओल्ड इन्फाक्ट हुआ हो, कभी साहब 5 साल पहले दर्द हुआ था, फिर बीच में आपका एसिम्टोमेटिक लंबा गैप चला गया, आप एसिम्टोमेटिक रहे, कभी प्रॉब्लम नहीं आई, और अभी लेकिन आपको लग रहा है कि कुछ तो प्रॉब्लम है लेकिन आइडेंटिफाई नहीं हुई। ईसीजी नॉर्मल आ गया, ट्रोपाई नॉर्मल आ गया, सारे टेस्ट, इनफैक्ट आपने इको भी करा लिया, इको में भी अभी रीजनल वॉल मोशन की प्रॉब्लम नहीं आई और ठीक आ गया, तो एक बहुत क्लासिकल टेस्ट होता है जो इमीडिएट कर सकते हैं, आउटडोर बेसिस होता है और राजस्थान में फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। उस टेस्ट का नाम होता है सीटी कोरोनरी एंजियोग्राफी। इट्स सिंपली एक सीटी स्कैन कराओ, आपका जो कार्डियक वेसल से सामने दिखाई दे जाएगी कि ये है पिक्चर। और वो जनरली एक और रॉन्ग कॉन्सेप्ट बताता हूँ, लोगों को ये लगता है कि सीटी स्कैन में रेडिएशन ज्यादा होता है। कितने लोगों को लगता है? रेज योर हैंड, अभी पता लग जाएगा। सामान्य ज्ञान की बात करते हैं कि सीटी स्कैन का मतलब होता है 1000 एक्सरे, है ना? मैं देखना चाहता हूँ कितने लोग होंगे यहाँ पे सामान्य ज्ञान वाले। ऐसे हाँ, ऐसा ही मैंने सुना है। हाँ, बस तो आज इसको क्लियरिटी के लेवल पे ले आते हैं। चलो हम पहले बताते हैं, एक एक्सरे मतलब 0.6 सीजीवाई रेडिएशन की मात्रा, या यूं कह सकते हो 7 दिन अगर आप धूप में घूम रहे हैं तो जो दोपहर की धूप का रेडिएशन होता है, वो 6 दिन तक अगर आप आधा घंटे रोजाना अगर रेडिएशन खाएं तो इट यू कैन से इट्स अ सिंपल सिंगल डिजिटल एक्सरे इक्वल टू दैट। अगर ऐसे ही आप लगभग इसको 3 टाइम्स मल्टीप्लाई कर दे, इट्स इक्वल टू सीटी स्कैन। आजकल की जो मशीनें हैं वो इतनी प्यूरिफाइड हैं कि इससे ज्यादा रेडिएशन नहीं आता किसी भी मशीन में। यानी जो पहले के जमाने में जब मशीन खोजी गई थी तब वो ऐसा हुआ करता था कि इतना रेडिएशन था, 3 एक्सरे और 5 एक्सरे और 4 एक्सरे, दैट इज इक्वल टू 1 सीटी, दैट्स इट। तो ये क्लियर हुआ कि इन्हें डरना नहीं कि अरे भाई साहब डॉक्टर साहब ने तो जाते ही सीटी स्कैन लिख दिया, अभी पता नहीं इतना रेडिएशन कौन खाए। कोई रेडिएशन नहीं है। अगर लगातार 10 दिन धूप में घूम रहे हो, एक मजदूर जो रेगुलर अभी मई जून में दोपहर में जो काम करेगा मनरेगा में, वो एक सीटी स्कैन के बराबर का रेडिएशन ले रहा है, दैट्स इट। बल्कि उसमें विटामिन डी भी ले रहा है। तो इसमें डरना नहीं, ठीक है। नाउ यू कैन रूल आउट इजीली। आज ये टेस्ट फिर इतना प्रचलन में क्यों नहीं आया, ये प्रश्न उठ सकता है कि भाई अगर इतना ही क्लासिकल टेस्ट है तो व्हाई नॉट इट्स सो मच पॉपुलर। तो इसका रीजन एक सिंपल सा है कि कन्वेंशनल कोरोनरी एंजियोग्राफी की जाती है ताकि अगर कोई प्रॉब्लम है तो इमीडिएटली यू कैन एड्रेस। बट सीटी कोरोनरी एंजियोग्राफी इज स्क्रीनिंग टेस्ट। स्क्रीनिंग का मतलब होता है आप पहले पता तो लगा लो प्रॉब्लम है कि नहीं है। इफ सीटी कोरोनरी, अभी यहाँ पे मेरे सेशन में कई लोग ऐसे बैठे होंगे जिनको मैंने सीटी एडवाइस किया एंड रेगुलरली दे आर टेकिंग मेडिसिन विदाउट एनी हार्ट अटैक, उनको भी हार्ट अटैक आया नहीं है, लेकिन कैडरेट स्कोर 1 या कैडरेट स्कोर 2 है, दे कैन टेक मेडिसिन दैट इज प्रोफाइलैक्टिक मेडिसिन, और वो अब आने वाले 5 7 10 साल के लिए अपने आप को प्रोफाइलैक्टिकली प्रिवेंट कर सकते हैं। आप सब लोगों ने सुना होगा कि मलेरिया के समय में, जब मलेरिया हुआ करता था एक समय में, तो उस मलेरिया में क्या होता था कि लोग प्रोफाइलैक्सिस खाया करते थे क्लोरोक्विन का। याद है? कितने लोगों को याद है ना? प्रोफाइलैक्सिस वीकली वंस क्लोरोक्विन यू कैन टेक सो दैट यू कैन प्रिवेंट मलेरिया। मलेरिया। एग्जैक्टली ऐसा ही है, एग्जैक्टली ऐसा ही है। तो यू कैन प्रिवेंट नाउ। ये बात हो गई अपनी सिंपली जो हमने बात करी कि भाई चेस्ट पेन की। अब आते हैं सांस फूलने पर, है ना? सांस फूलने की अगर हम बात करें तो सांस फूलने के मल्टीपल कॉजेज हो सकते हैं। कार्डियक कॉज सबसे लास्ट में रखिए। सबसे पहला कॉज तो होता है
आपको आदत नहीं है इतना चलने की। अभी जब कोविड का एरा गया, 2 साल तक लोग सिडेंटरी पड़े रहे घर में, ज्यादा आदत नहीं थी मेहनत करने की, जैसे ही घर से निकले। अब पहले 100 कदम चल पाते थे, अब सीधा ही उनको आधा किलोमीटर किलोमीटर चलना पड़ गया। तो वो एक बड़ा रीजन है, जिसको हम कंडीशनिंग एंड प्री कंडीशनिंग कहते हैं। द सेकंड कॉज इज अनीमिया। अगर आपको हीमोग्लोबिन कम है, लेस देन 10 है, तो आपको सांस फूलेगा ही फूलेगा, छोटा मोटा काम करते ही सांस फूलने लगेगा। और ब्लड लॉस कहाँ से हो रहा है, वी नेवर नो। बहुत सारे एक जगह हो सकती है, किसी को पाइल्स है, किसी को कुछ प्रॉब्लम है, किसी को जीआई ब्लीड है, किसी को मेंसेस में एक्सेस ब्लीडिंग होता है, तो उनको एनीमिया होता है ट्रांजिएंट, जो कुछ दिन तक रहता है, फिर धीरे धीरे रिकवर कर जाता है। एनीमिया इज द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ डिस्निया। डिस्निया कहते हैं, एक मेडिकल टर्म है, सांस फूलना। गेट दिस पॉइंट? तो डिस्निया ऑन एक्सर्शन can be because of anemia, or if a person is not ready for a continue walking or any exertion. Get this point? इन दो को जब हम रूल आउट कर लें, तब हम बात करें कि भाई अब अगर आपको चलते फिरते सांस फूल रही है, जैसे आप इसको, फिर हम कैसे आइडेंटिफाई करें? भाई हमको तो नहीं पता, तो इसको आइडेंटिफाई करने का एक तरीका होता है, आप पहले कितना चलते थे उससे तुलना कर सकते हैं। अगर आप पहले रेगुलर 4 किलोमीटर की वॉक करते थे, या 2 किलोमीटर की वॉक करते थे, या 1 किलोमीटर की ही वॉक करते थे, अब आपको उसी वॉक में, उसी एरिया में अगर अब आपकी सांस फूलने लग रही है, तो अब आप उसको रूल आउट करो। सांस फूलने के साथ चेस्ट पेन अगर हो रहा है, साथ में पसीना आ रहा है, देन अगेन इमीडिएटली गो एंड कंसल्ट ए डॉक्टर फॉर योर दीज सिम्टम्स। ये सामान्य सिम्टम नहीं हो सकते हैं, इनके लिए आपको, सामान्य हो गए चलो मैंने मान लिया, लेकिन फिर भी रूल आउट करना चाहिए। डोंट इग्नोर एनी सिम्टम, डोंट इग्नोर। कई बार ऐसे पेशेंट मैंने देखे हैं जो केवल खाना खाते हुए उनको केवल जॉ पेन होता था, भोजन करते हुए केवल जॉ पेन, दैट्स इट, और कोई सिम्टम नहीं है। एंड दैट इज बेसिकली एंजाइनल पेन। खाना खाते खाते पेन रेडिएट कर सकता है, या एक्सरसाइज करते करते या घूमते घूमते पेन रेडिएट कर सकता है आपके जॉ में। तो ये भी लोगों को लगता है कि तो दांत का दर्द है, दांत का दर्द है, दांत नहीं, दांत का नहीं है, वो कार्डियक सिम्टम है। ठीक है? तो ये कुछ ऐसे सिम्टोमेटोलॉजी जो हमने आपको बताई, जो बड़े काम की है। इसको आप सब लोग अपने इसी वीडियो को, जो भी बन रहा है ऑलरेडी, आई थिंक ये रहेगा फेसबुक पे और यूट्यूब पे लाइव रहेगा, तो इसको आप बार बार सुनेंगे तो ये सारी चीजें रिकॉल कर पाएंगे, है ना? तो हम ऐसी कुछ इंफॉर्मेटिव चीजें आपके साथ या शेयर करेंगे ताकि आप इसको रिकॉल कर सके फ्यूचर में भी। ठीक है, हाँ पूछिए, नेक्स्ट पूछिए। इट्स वंडरफुल कि इतना कुछ छुपा हुआ और हमें पता ही नहीं है। हमारी मानसिकता ये होती है कि सिर दर्द होता है तो या तो गैस से हो रहा है या फिर ब्रेन ट्यूमर से हो रहा है, बीच वाला रास्ता हमें पता ही नहीं है ना? सही है। तो ये जो सेशंस हम लोग ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, ये इसीलिए कर रहे हैं कि ना तो इसको गैस का माने और ना ही इसको ब्रेन ट्यूमर माने, इसका करेक्ट कारण जाने और उसका इलाज करवाएं। तो दूसरा प्रश्न है, हृदय रोग से कैसे बचा जा सकता है? अपने हृदय को स्वस्थ रखने के लिए व्यक्ति को क्या क्या करना चाहिए? देखो, सबसे पहले हृदय रोग के कारण समझते हैं। हृदय रोग का जो मैं मानता हूं, किताबों के कारण हम भी डिस्कस करेंगे, लेकिन मेरे दृष्टिकोण में सिंगल मोस्ट कारण है स्ट्रेस। ठीक है? अब इसके बाद में आपका डाइट, आपका रूटीन, ये स्ट्रक्चर, वो सब बात करेंगे। कंजेनाइटल हो सकता है, जेनेटिक हो सकता है, वो सब ठीक बात है। बट द मोस्ट कॉमन फैक्टर व्हाट आई थिंक इज स्ट्रेस। कैसे? अगर मैं स्ट्रेस मानता हूं तो प्रूव इट, सिंपल प्रूव करते हैं आपको। आप में से कितने लोग हैं जो जगन्नाथपुरी गए हैं कभी घूमने? ऐसे ही एक है ना, आयुर्वेदिक रिसर्च को मैं कोट करूंगा यहाँ पर, जैसे त्रिपुरारी जी ने खुद ने हाथ खड़ा किया। जगन्नाथपुरी में आपने देखा होगा, वहां के जो पंडित पुजारी हैं जो पूजा करते हैं, उनका डाइट आप चार्ट देखो, वो घी का चूरमा खाते हैं। ठीक है? और सब 100-100 किलो के हैं, और सबकी आयु लगभग 70-80-90 साल है, और सबकी कोरोनरी एब्सोल्युटली फिट है, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है, और उनको हार्ट अटैक भी नहीं होता। अगर घी खाने से और वसा खाने से, इन सब से ही अगर डायरेक्ट रिलेशन होता हार्ट का, तो मुझे लगता है सबसे पहले वो होने चाहिए होते थे कि भाई हाँ, ये 20% शुड बी फर्स्ट एंड प्राइमरीली शुड बी अफेक्टेड, बट ऐसा तो नहीं है। तो इसका क्या मतलब हुआ? मैं ये नहीं कह रहा हूं कि ये फूड हैबिट सही है, नहीं, दोनों मान्यताओं को साथ लेते हैं। इसमें है रीजन स्ट्रेस का। अगर आप स्ट्रेस में जो भोजन कर रहे हैं, वॉट एवर यू आर ईटिंग व्हाइल यू आर इन स्ट्रेस, इट्स एब्सोल्युटली पॉइजन। एंड वॉट एवर यू आर ईटिंग एंड विदाउट स्ट्रेस, विद हैप्पी माइंड, इट्स ऑलवेज ए नेक्टर। आपके लिए वो भोजन अमृत है, जब आप उसको बिना स्ट्रेस के मस्ती और आनंद के साथ ले रहे हैं। और वही भोजन आपके लिए विष है, अगर आप उसको स्ट्रेस में खा रहे हैं। और अब अपनी अपनी सारी दिनचर्या है, जितने लोग बैठे हो,
देख सकते हो 81 पीपल आर कनेक्टेड, यू कैन ऑब्जर्व दैट कि व्हाट आई एम ईटिंग एंड व्हाट माय स्टेट ऑफ माइंड इज। आज की स्थिति क्या है देखो, है ना, यूथ को देखो, आप सुबह सुबह उठते हैं, उनको उठने का टाइम नहीं पता, सोने का टाइम नहीं पता, जागने का टाइम नहीं पता, लंच का टाइम नहीं पता, डिनर का टाइम नहीं पता, और ये पता है बॉस डांटेगा, उसकी डांट को झेलना है, उसके बाद घर में आके सारा स्ट्रेस, किसी पे तो चीख चिल्ला के निकालना है, कंप्लीट डे इन अ स्ट्रेस्ड मैनर। दैट इज वाई जो भी वो खा रहे हैं भागते दौड़ते, वो उनके लिए जहर बन रहा है और उनकी कॉर्नरी में जाके जम रहा है और आयुष्य को कम कर रहा है, एज को कम कर रहा है। तो अब इसको कैसे रिलीव करें, इसके ऊपर हम बात करते हैं। पहला पॉइंट गया। नाउ सेकंड पॉइंट इज डाइटरी हैबिट्स, अल्कोहल, सिगरेट स्मोकिंग एंड सो मेनी थिंग्स यू कैन इवन इजीली नेम्ड आउट। आज के समय में इतने सारा आपके सामने कचरा उपलब्ध है कि आप उन सबको इनुमरेट कर सकते हो, है ना। जो आप भोजन कर रहे हो, फास्ट फूड खा रहे हो, सब के सब प्रोन है। एक समय में हमारा डाइट बड़ा स्पेशल होता था ना, आराम से अपना वेजिटेरियन डाइट, वी आर बॉर्न वेजिटेरियन। मैं यहाँ पे फिर कह रहा हूँ, आई एम नॉट गोइंग इन एनी तर्क कुतर्क में नहीं जा रहा हूं, लेकिन वी आर बॉर्न वेजिटेरियन बिकॉज ह्यूमन बींग्स आर द वेल डेवलप्ड क्रिएचर ऑन दिस प्लेनेट। हमारा जीआईटी किसको पचाने के लिए बना है? वेजिटेरियन चीज को। अगर ऐसा नहीं होता तो फिर हम होते भेड़िया या कोई शेर, चीता, बगीरा, इस तरह के होते कुछ, हम बने ना मनुष्य। तुम क्यों हम कहते हैं कि अच्छा, आप में से कितने ऐसे लोगों को लगता है कि मनुष्य सबसे ज्यादा डेवलप्ड प्राणी है इस पृथ्वी पर, तो कम से कम, या आपको लगता है नहीं नहीं हमसे डेवलप तो और कोई दूसरे जीव हैं? ह्यूमन बींग्स आर मोस्ट डेवलप्ड। व्हाई? नंबर वन, दे हैव सीएनएस, नर्वस सिस्टम है। दे हैव कार्डियोवास्कुलर सिस्टम, 4 स्ट्रोक इंजन है हमारा हार्ट। They have well developed digestive system, they have well developed respiratory system, that's why they most developed creature। तो ये digestive system वेजिटेरियन डाइट को पचाने के लिए बना है ना। ये नॉन वेजिटेरियन डाइट को पचाने के लिए नहीं बना है, पर अनफॉर्चुनेटली स्वाद को लेते हुए लोग खाते हैं, या जो भी वट एवर, उसको हम साइड में रखते हैं। तो डाइटरी हैबिट्स आर द मोस्ट कॉमन कॉज आफ्टर स्ट्रेस। थर्ड इज जेनेटिक, हो सकता है प्रीडिस्पोज 10 to 15% केसेस में। देन द फोर्थ थिंग जो हम इसमें लेते हैं, अनियमित दिनचर्या या इरेगुलर और इनडिसिप्लिन्ड मैनर में लाइफ को जीना। इनडिसिप्लिन मैनर के अंदर जी सकते हैं। द फिफ्थ वन इज एसोसिएटेड एनोमलीज, प्रॉब्लम कुछ और है लेकिन उसका सीधा इफेक्ट उसके दिल पर आ रहा है ना। कोई और बीमारी है लेकिन वो डायरेक्ट इम्पैक्ट उसके हार्ट पर कर रही है। तो इसमें अच्छा, फिर एक और चीज जिसमें आता है, जैसे मैंने डाइटरी हैबिट के साथ बताया, हाइपरटेंशन। कुछ लोगों को पहले ब्लड प्रेशर शुरू होता है एंड दे लैंड अप इनटू अ कार्डियक डिजीज। तो कुछ मोस्ट कॉमन चीजें मैंने इसके बारे में बताया। अब हम वापस आते हैं स्ट्रेस के ऊपर। सबने बता तो दिया कारण स्ट्रेस है, लेकिन रिलीविंग का तो बताया ही नहीं। रिलीविंग के लिए हम बताते हैं सबसे उत्तम, स्ट्रेस शरीर के स्तर से ज्यादा होता है मनोभाव या मन स्तर पर, और उसका केवल और केवल और केवल एक उत्तर है, वह है ध्यान। केवल और केवल और केवल। कोई ऐसी दवा नहीं बनी, कोई ऐसी चीजें नहीं बनी है जो, हालांकि मेडिसिन है आज के जमाने में बहुत सारी चीजों के लिए। कोई डिप्रेसिव हो चुका है, ऑलरेडी सफरिंग फ्रॉम सम साइकेट्रिक डिसऑर्डर्स, दे शुड गो फॉर मेडिसिन, नो डाउट, जाना ही चाहिए। लेकिन ध्यान कर रहे होते तो शायद ये पर आता ही नहीं, ऐसा स्थिति नहीं आती। तो ध्यान के माध्यम से मन को सेटल करना सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। जब आपका मन स्थिर और शांत होता है, आप कुछ भी खाइए, मैं कह रहा हूँ पत्थर भी खाएंगे तो आपके भीतर अमृत ही है, कुछ नहीं होगा आपको, है ना। जैसे मैंने बेस्ट एग्जांपल दिया, ये बात है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा में मेरी एक टॉक थी। आई वाज टॉकिंग अबाउट वियान प्राण, है ना। 5 तरह के प्राण हम मानते हैं, सभी आप में से काफी लोग हैं जो योग में इंटरेस्टेड है। पान, अपान, वियान, समान, उदान। सर्कुलेटरी सिस्टम इज डायरेक्टली रिलेटेड टू वियान प्राण। वियान प्राण के बारे में जो लिटरेचर मैंने पढ़ा है उसके बारे में बात कर रहा हूं। मैं अपने मेडिकल साइंस की तो मैं बात कर ही रहा हूं, लेकिन जो लिटरेचर हमने बात करी, जो पढ़ा है, उसके बारे में हम ये बताते हैं कि वियान प्राण के डिसबैलेंस के कारण आपका सर्कुलेटरी सिस्टम यानी हार्ट एंड ब्लड वेसल्स अफेक्ट होती हैं। हृदय में 3 मुख्य धमनियां हैं, गंगा, जमुना और सरस्वती। इन तीनों मुख्य धमनियों में से किसी एक में रुकावट आ जाए तो होता है हृदयाघात, या जिसको हम कहते हैं एमआई। अब इसके बारे में हम फिर बाद में लेंगे। तो पहला मैं वापस से आ रहा हूं बिंदु स्ट्रेस पर। स्ट्रेस मैनेजमेंट के लिए हम सबको लगता है तो ऐसे ही हो जाता है कि कुछ नहीं है, कोई भी कुछ भी बोलेगा कर लेंगे, क्या है, नहीं। जैसे आप संगीत सीखने के लिए संगीत शिक्षक के पास जाते हैं,
घुड़सवारी सीखने के लिए घुड़सवारी के स्कूल में जाते हैं, योग सीखने के लिए योग शिक्षक संस्थान में जाते हैं। आप किसी भी चीज को सीखने के लिए कोई एक मास्टर के पास जाते हैं ना, नहीं तो क्या यूट्यूब पे पढ़ के सीख लिया होता, यूट्यूब पे स्टेज मैनेजमेंट देख के कर लिया होता? नहीं। इसके लिए सबसे सुंदर और सबसे बेस्ट तरीका है डू सुदर्शन क्रिया। गो एंड एनी एनी आर्ट ऑफ लिविंग क्लास एंड जस्ट आप जाएं और वहां पर जहां भी कहीं आपके आसपास में हो, ध्यान शिक्षक के पास जाकर के ध्यान सीखिए। मेडिटेशन इज रियली नीड ऑफ आवर राइट नाउ। आज के समय में अगर कोई सबसे, जब मैं बार बार इसलिए स्ट्रेस दे रहा हूं, लोग क्वेश्चन कुछ भी पूछेंगे, यहाँ पर बहुत सारे प्रश्न आएंगे मेरे पास में, लेकिन इस बात से नावाकिफ है वो कि उनको यह पता नहीं है मूल तत्व क्या है ध्यान। अगर आप उस पर थोड़ा ध्यान दें कि हाँ भाई मुझे ध्यान सीखना है, मुझे किसी तो टीचर के पास जाना है ताकि मैं प्रॉपर तरीके से ध्यान सीखूंगा, तो शायद मेरे जीवन में जो पॉसिबिलिटीज हैं, नॉट ओनली कार्डियक डिजीज, इनफैक्ट अदर डिजीजेस, गट आपकी प्रॉब्लम कर रही है तो भी उत्तर ध्यान है, खोपड़ी आपकी दिक्कत कर रही है तो भी उत्तर ध्यान है। तो क्यों ना हम एक मूल तत्व पे बात करें। ठीक है, तो कार्डियक इश्यूज में मैंने आपको बताया, अभी जितने तरह के मैंने बताया उसमें सबसे पहला स्ट्रेस फैक्टर है रिलीव योर स्ट्रेस विद मेडिटेशन, सुदर्शन क्रिया, प्राणायाम, सो दैट आप आने वाले, एक है ना योग की परिभाषा है, आपको बताते हैं रहस्य। पढ़ा है सबने पतंजलि योग सूत्र? पढ़ा है नहीं पढ़ा? जाना तो होगा। एयम दुखम अनागतम, वह दुख जो तुम्हारे जीवन में अभी आया नहीं उसको भी जो रिलीव कर दे, दैट इज यू, एक परिभाषा है उसमें। तो आप ये मान के चलो, अगर आपका पथ ठीक है, अगर आप सही अपनी जीवनचर्या को रखते हैं, तो वह दुख जो जीवन में आया नहीं से बच सकते हैं। क्लियर है ये चीज? ठीक है, प्रश्नों पर आते हैं फिर, और कोई प्रश्न है तो पूछिए। ये क्वेश्चन है, कोलेस्ट्रॉल और हृदय रोग के बीच में क्या कोई संबंध है? बिल्कुल डायरेक्ट रिलेशन है। हाई कोलेस्ट्रॉल वेरी मच प्रोन फॉर कार्डियक डिजीज, सीधा। अब इस कोलेस्ट्रॉल को थोड़ा सा समझ लेते हैं। कोलेस्ट्रॉल में दो प्रकार के होते हैं, गुड कोलेस्ट्रॉल एंड बैड कोलेस्ट्रॉल। मैं लेमन टर्म में बात कर रहा हूँ, मेडिकल टर्म में बात करूंगा तो शायद समझ कम आएगी। आप लोग लिपिड प्रोफाइल कराते हो, उसमें ऊपर ऊपर लिखा होता है ट्राइग्लिसराइड, फिर लिखा होता है एलडीएल, फिर लिखा होता है वीएलडीएल, फिर लिखा होता है एचडीएल, फिर लिखा होता है एपोप्रोटीन ए। इनका मायने और इनका मीनिंग अपन समझ लेते हैं। ठीक है, तो जब भी हम कोई भोजन करते हैं जो तेलीय या वसा युक्त होता है, फैट कंटेंट डाइट अगर आपने लिया, तो सबसे पहले वो एसिमिलेट होता है ट्राइग्लिसराइड की फॉर्म में। हर भोजन के पदार्थ की एक यूनिट होती है, जैसे मीठा खाएंगे तो उसकी यूनिट है ग्लूकोज, फैट खाएंगे तो वो जाएगी सीधी ट्राइग्लिसराइड की फॉर्म में एब्जॉर्ब, और एब्जॉर्ब होकर के जाती है लीवर के पास, फिर लीवर उसको डिसइंटीग्रेट करता है। एलडीएल, एचडीएल एंड कोलेस्ट्रॉल, इन सब में HDL हाई डेंसिटी लाइपोप्रोटीन इज गुड कोलेस्ट्रॉल। अगर आपके लिपिड प्रोफाइल में HDL की मात्रा बढ़ी हुई है देन यू आर प्रोटेक्टेड फ्रॉम कार्डियक डिजीज। लेकिन अगर आपके रक्त में, ब्लड टेस्ट में LDL की मात्रा ज्यादा है, VLDL की मात्रा ज्यादा है, एपोप्रोटीन ए की मात्रा ज्यादा है, यू नीड टू स्टार्ट एनी सॉर्ट ऑफ मेडिसिन, लाइक जो हम एंटीलिपिडेमिक ड्रग्स कहते हैं। आप सबने कॉमन नाम जो सुने होंगे, एटोरवास्टेटिन, रोजुवास्टेटिन, स्टेटिन्स, फिनोफिब्रेट्स, और बहुत सारी ऐसी दवाएं हैं जो एंटीलिपिडेमिक होती हैं। स्टार्ट करिए और साथ में अपनी दिनचर्या को सुधारिए और भोजन और खान पान को सुधारिए। जो भी आप खा रहे हैं उसमें रेस्ट्रिक्ट फैट डाइट। हमको पता नहीं चलता हम कितनी भुजिया खा गए दिन भर में, हमको पता नहीं चलता, 2-3 कचौरी समोसे तो हम अपने पाउच में यहीं कहीं एडजस्ट कर लेते हैं, है ना। तो वो जो डाइट है, वो डाइट आपको प्रॉब्लम में डाल सकता है अगर आपका एलडीएल बढ़ा हुआ है। तो डायरेक्ट रिलेशन है कोलेस्ट्रॉल या लिपिड प्रोफाइल का हमारी कार्डियक डिजीजेस के साथ में। सेकेंड थिंग इज ब्लड प्रेशर। तो ब्लड प्रेशर को हम थोड़ा सा समझ लेते हैं कि व्हाट ब्लड प्रेशर इज। तो जब हमारा हृदय धड़कता है, तो मैंने अभी बताया 4 स्ट्रोक इंजन है हमारा हार्ट। एल भी जब कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो जो प्रेशर से फेंकेगा, मोटर होती है ना, जैसे मोटर प्रेशर से फेंकती है पानी, ऐसे ही जब हमारा हृदय प्रेशर से जो ब्लड को फेंकता है आउटा में, वो जो प्रेशर देता है वो हम कहते हैं उसको ब्लड प्रेशर। कहाँ फील कर सकते हो? अपनी रेडियल आर्टरी पे फील कर सकते हो, अपनी कैरोटिड आर्टरी पे फील कर सकते हो, पल्स को फील कर सकते हो। ये प्रेशर है, इसको हम नापते हैं। तो हाई ब्लड प्रेशर के जितने भी लोग होते हैं, दे आर अगेन प्रोन फॉर कार्डियक डिजीज एज वेल एज दे आर प्रोन फॉर न्यूरोलॉजिकल डिजीज लाइक स्ट्रोक। जिन भी लोगों का ब्लड प्रेशर ज्यादा रहता है, रूटीन से ज्यादा रहता है, वो लोग प्रोन होते हैं। प्रोन किसके लिए?
हृदय रोगों के लिए और मस्तिष्क रोग के लिए भी। आपने सुना होगा एक व्यक्ति बिल्कुल अच्छा भला था, ठीक ठाक चल रहा था, अचानक से कोई ऐसी घटना घटी और वो स्ट्रोक हो गया, लकवा हो गया। स्ट्रोक मानी पक्षाघात या लकवा जिसको हिंदी में कहते हैं, कि जी ऑफिस में काम कर रहे थे, अचानक से लकवा आ गया। वो ऑफिस में काम कर रहे थे स्ट्रेस में, स्ट्रेस बढ़ते बढ़ते इस लेवल पर आया कि उनका जो दिमाग की नसें थी, जिस बीपी को सहन कर सकती थी, उससे वो एक्सीड कर गया, नसें फट गई और उनको पक्षाघात हो गया। तो हाई ब्लड प्रेशर इज डायरेक्टली रिलेटेड टू कार्डियक डिजीज। ऐसे ही एक और नॉन कम्युनिकेबल डिजीज जिसका नाम है डायबिटीज। डायबिटीज इज ऑल्सो रिलेटेड टू कार्डियोवास्कुलर डिजीज एज वेल एज न्यूरो डिजीज। अब डायबिटीज का एक खास बात आपको बताते हैं। जब हमने आपको बताया कि चेस्ट पेन, हमने सबसे पहले सिम्टम की बात करी थी चेस्ट पेन। डायबिटिक पर्सन को चेस्ट पेन नहीं होता। डायबिटिक व्यक्ति को अगर कार्डियक डिजीज हो रही हो या उसको कोई भी कार्डियक प्रॉब्लम हो रही हो, उसको केवल घबराहट हो सकती है, पसीना आ सकता है, बेचैनी हो सकती है, लेकिन जरूरी नहीं है कि उसको चेस्ट पेन हो। इसके फायदे भी हैं और इसके नुकसान भी है। फायदे ये हैं कि सडन हो जाता है जो होना होता है, तो अच्छा भला व्यक्ति ठीक ठाक था, चल लेता है। और दूसरा नुकसान ये है कि पता नहीं लगता है कि कार्डियक डिजीज है या नहीं है। तो आप इसके फायदे देखना चाहें तो फायदे देख सकते हैं, नुकसान देखना चाहें तो नुकसान। फायदा तो यही है कि एवरीथिंग इज सडन। अच्छा, बाकी जो भी लोग अभी मीटिंग में ग्रुप चैट में डाल रहे हैं ना, पल्स इतना है, बीपी इतना है, मैं भी ये सारी चीजें पढ़ नहीं पाऊंगा, ये त्रिपुरारी जी अब पूछ लेंगे तो अपन उन पे बात कर लेंगे। ठीक एक है। मिनट में आप लोग प्रश्न अपने तैयार रखें। एक सेशन लास्ट में हमारे पास होता है जिसमें हम ऑडियंस के क्वेश्चंस लेते हैं। प्लीज राइट डाउन एंड आई एम ऑल्सो कॉपिंग दोज क्वेश्चंस इन माय व्हाट्सएप। वेट फॉर योर टर्न, वी विल डिस्कस दोज क्वेश्चंस आल्सो। यस ठीक सर, है, प्लीज। तो ये डायरेक्ट रिलेशन हुआ ब्लड प्रेशर के साथ, डायबिटीज के साथ, कार्डियक डिजीजेस का। यस सर। बहुत विस्तृत है ये दिल है कि मानता नहीं है। ये बिल्कुल। मतलब ये वैसे भी परेशान करता है और वैसे भी परेशान करता है ये, हाँ? खैर कोई नहीं, सभी परेशानियों का हल होता है। एक एक परेशानी यह आई है कि क्या हार्ट अटैक, कार्डियक अरेस्ट एंड हार्ट फेलियर, इनमें कोई डिफरेंस है? बिल्कुल है। देखो, एक शब्द होता है हार्ट अटैक, एक होता है कार्डियक अरेस्ट, एक होता है हार्ट फेलियर। ये तीन अलग अलग टर्म्स हैं, इन तीनों को अपन थोड़ा सा इलेबोरेट करते हैं। हार्ट अटैक, हार्ट अटैक का मतलब होता है कि हृदयाघात चल रहा था बढ़िया, अचानक से रुक गया। ठीक है। जब हृदयाघात होता है तो हृदय जिस जैसे एक मोटर चल रही थी पानी की और चलते चलते रुक गई। क्यों? क्योंकि उसमें कुछ मशीनरी या मैकेनिकल गड़बड़ आ गई। ऐसे ही हमारे हार्ट में चलते चलते अचानक से कोई गड़बड़ आ जाए तो वो रुक जाए उसकी गति और हमारे लिए जानलेवा साबित हो जाए वो गति, उसे हम कहते हैं हार्ट अटैक, पहला वर्ड। ठीक है। अब कैसे हो सकता है? तो उसका मोस्ट कॉमन कॉज होता है एमआई, मायोकार्डियल इन्फार्क्शन, यानी जो गंगा जमुना सरस्वती तीन जो धाराएं थी उनमें से कोई एक धारा बंद हो गई, उसका एक मुख्य कारण होता है। जो हमारी ब्लड सप्लाई है, खुद हार्ट को भी तो ब्लड सप्लाई है, पैदा होने से धड़कता है और मृत्यु पर्यंत धड़कता रहता है। जब जिस डेथ, जो आपका टाइम ऑफ डेथ होगा वहां तक धड़कता रहता है। तो उसको प्रॉपर धड़कने के लिए क्या चाहिए? उसको भी तो भोजन चाहिए, हृदय को भी। हृदय की मांसपेशियों को भोजन पहुंचाती है वाहिनियां, रक्त वाहिनियां, और वो बंद हो जाए किसी कारणवश तो हृदय रुक जाता है, इसको हम कहते हैं हृदयाघात, पहला वर्ड। दूसरा, अगर किसी व्यक्ति पेशेंट को वेल्वुलर हार्ट डिजीज हो या ऐसे ही कोई बार बार जीवन में हृदयाघात हुए हैं लेकिन वो बच चुका है, तो जो नॉर्मल उसका हार्ट काम कर रहा था अब वो धीरे 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 उसकी क्षमता कम होने लगी। सपोज एक नॉर्मल, जिसको हम नापते हैं इजेक्शन फ्रैक्शन में, ईएफ कहते हैं उसको मेडिकल टर्म में। एक नॉर्मल व्यक्ति का जैसे इजेक्शन फ्रैक्शन 60-65% था, लेकिन अब चूंकि पास्ट में उसको एक लंबे समय तक बीमारी का सामना करना पड़ा और वो 5-7 साल तक अपनी बीमारी के साथ दवाएं खाते खाते चलता रहा या इग्नोर करता रहा, या सबसे अप्रोप्रिएट वर्ड है इग्नोरेंस। बीमारी है लेकिन नहीं नहीं नहीं, डॉक्टर के पास नहीं दिखाएंगे, अभी तो 10 तरह की इधर उधर इलाज करा लेंगे, कुछ तो तुलसी पत्ते चबा लेंगे, अदरक जिंजर पी लेंगे, हमने सुना है लहसुन से भी ठीक हो जाता है, हमने सुना है और भी नई तरह की मशीनें आई हैं। वो सुना है के चक्कर में टाइम पास चल रहा है और 4-6 महीने, साल भर, 2 साल निकल गए। इस चक्कर में जो हृदय धीरे 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 जो उसकी गति कम होने लगती है,
इसको हम कहते हैं अब वो हृदय उस लेवल पर काम नहीं करता जिस लेवल पे पहले काम कर रहा था। तो इसको हम कहते हैं उसकी कार्य क्षमता में कमी आना, इजेक्शन फ्रैक्शन को कम आना। और ऐसे ही धीरे धीरे इजेक्शन फ्रैक्शन में कमी होते होते एक दिन वो हो जाता है हृदय फेलियर। अब वो मोटर जो थी वो फेलियर में चली गई। अब उसकी स्थिति ऐसी हो गई कि अब वो थोड़ा सा भी उठेगा बैठेगा और सांस फूलेगा, बाथरूम तक नहाने जाएगा तो सांस फूलेगा। अब ये उसके जीवन में कॉमन फीचर हो गया है कि अब उसको अपने रूटीन काम के लिए भी तकलीफ होती है। तो इसको हम ग्रेडिंग देते हैं, NYHA क्लास, न्यूयॉर्क हार्ट क्लासिफिकेशन है, जिसमें हम ग्रेड देते हैं ग्रेड 1 2 3 4। ग्रेड 1 कोई दिक्कत नहीं है साहब, ठीक ठाक चल रहा है। ग्रेड 2 थोड़ा सा ही चलते हुए सांस फूल रहा है। ग्रेड 3 थोड़ा लंबा चल के सांस फूल रहा है। ग्रेड 4 अभी थोड़ा सा ही उठे बैठे कि सांस फूल रहा है। और एक ग्रेड 5 होती है कि पड़े पड़े ही सांस फूल रहा है। तो इसका ये मतलब हुआ कि अब उसका हार्ट जो है वो फेलियर की कंडीशन में आ चुका है। तो ये तीनों के शब्दों के डिफरेंस है, हार्ट अटैक, कार्डियक फेलियर और कार्डियक अरेस्ट। इन सब में आप ये ऐसे इसको डिफरेंस दे सकते हो। जैसे कार्डियक अरेस्ट कई और कारणों से भी हो सकता है, केवल हृदय की बीमारी नहीं। कोई पॉइजनिंग हो गया तो भी उसको कार्डियक अरेस्ट हो सकता है। कोई उसने ऐसी ड्रग ले ली, कोई ऐसी मेडिसिन ले ली जो उसके हार्ट के ऊपर नेगेटिव इफेक्ट देती है, उससे भी कार्डियक अरेस्ट हो सकता है। मोटर चलते 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 बंद हो गई, बस बंद हुआ। और ये बंद होने का समय अगर 10 मिनट है, यहाँ पे मैं एक एग्जाम्पल दूंगा आप सब लोगों को, बेस्ट एग्जाम्पल है। के की डेथ कितने लोगों को याद है? सिंगर, मशहूर सिंगर के, जिनकी स्टेज पर शो करते हुए डेथ हुई थी। एग्जाम्पल यहाँ लेना जरूरी है। क्यों जरूरी है इसको भी हम समझेंगे, है ना, फिर उसके बाद और क्वेश्चंस लेंगे। देखो क्या है, हमको पता नहीं लगता, कई बार हम बिल्कुल अदरवाइज नॉर्मल घूम रहे हैं, एकदम सही से चल रहे हैं, बिल्कुल बढ़िया, जिम भी जा रहे हैं, खेल कूद भी रहे हैं, रोज सुबह बैडमिंटन खेलते हैं, क्रिकेट भी खेलते हैं, मॉर्निंग वॉक भी करते हैं, जिम भी करते हैं, हमको लगता है वी आर अदरवाइज हेल्दी। एक दिन अचानक क्या होता है कि आपको कोई एक्सर्शनल या स्ट्रेनियस जॉब आ गया आपके सामने। नहीं नहीं, आपको शो करना पड़ेगा, करना पड़ेगा। ठीक है चलो साहब, अब करना पड़ेगा तो पड़ेगा, क्योंकि बिजनेस है तो जाना पड़ेगा। अब वहां आप गए और आपकी रूटीन क्षमता से ज्यादा आप काम कर गए, तो उसमें दो तीन फैक्टर्स हुए। पहला, डिहाइड्रेशन। आपका शरीर डिहाइड्रेट होते होते आपके खून में क्या हुआ, गाढ़ापन होता गया, आपको पता नहीं चला। दूसरा, जब कोविड सीजन चल रहा था या कोई भी वायरस, अब अपन कोविड को हटा ही देते हैं क्योंकि कोविड से लोग आज भी घबराते हैं, पता नहीं क्यों। कोविड सीजन जब चल रहा था, क्योंकि डेथ उन दिनों में हुई थी, तो उसमें एक फीचर था वेस्क्यूलाइटिस, हृदय की वाहिनियों में सूजन आ गई लोगों को। लेकिन अब उस सूजन का पता नहीं लगता क्योंकि उसका कोई सिम्टम नहीं होता। आपकी ब्लड वेसल्स में सूजन है और आपको पता ही नहीं है, क्योंकि ना तो उसमें दर्द हो रहा, ना उसमें कोई और चीज हो रही, ना उसका कोई सिम्टम है। ज्यादा से ज्यादा एक सिम्टम होता है काफ पेन, पिंडलियों की मांसपेशियों में लगातार दर्द होता रहता है, तो उससे डीवीटी हो सकता है। स्मोकर्स में पीवीडी हो सकता है। लेकिन जो स्मोकर नहीं है वो, उसमें पता भी नहीं लगेगा कि हार्ट की वेसल्स में सूजन आ गई। अब आप एक तरफ हार्ट की वेसल्स में सूजन है जो अनआइडेंटिफाइड है, दूसरा आपने एक्सर्शन कर लिया जो डिहाइड्रेशन का कॉज था। सडनली आपकी एलएडी यानी मुख्य धारा में खून रुक गया और खून रुकते ही कार्डियक अरेस्ट हुआ। अब यहां पर पॉइंट इंपॉर्टेंट, जब कार्डियक अरेस्ट हुआ तो हमारे भारत में क्या प्रचलन है, कार्डियक अरेस्ट होने के बाद लोग रील बनाने लग जाते हैं। जहां पर वो बचाव कर सकते हैं उसका, जहां पर है ना पॉइंट ऑफ इंटरवेंशन का टाइम है, वो रील बनाने में चला जाता है। वो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। क्या कर सकते थे, बचाया जा सकता था। मैं फिर कह रहा हूं कैसे, अगर मान लो ऐसी कोई घटना आपके पास हो तो क्या करें। अगर कार्डियक अरेस्ट है ना, तो ऐसे यूट्यूब पे देख के छाती पे कूदने मत लग जाना, जैसा कि लोग समझते हैं कि है ना छाती में मसाज करो, माउथ टू माउथ रेस्पिरेशन दो, जैसा कि फिल्मों में देखा है ना। तो ये थोड़ी भ्रांति साइड में कर दो इसको। ये सब कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। ऐसा करने से कई बार आप हो सकता है उसको नुकसान पहुंचा सकते हो। या तो आप ट्रेंड हो, जिसे हम सीपीआर कहते हैं। इफ यू आर ट्रेन इन सीपीआर देन जस्ट ट्राई इट, अदरवाइज फिल्मों में देखा देखी ऐसा कुछ भी करने की जरूरत नहीं। हर जगह पर ऐसी, जहां भी बड़ी बड़ी जगह होती है जहां ऐसे शोज होते हैं, या आप कभी एयरपोर्ट पर गए हो या किसी भी हॉस्पिटल पे गए हो, रिसेप्शन पे एक लाल कलर का बक्सा होता है जिसपे प्लस होता है और ऊपर लिखा होता है AED। कितने लोगों ने देखा है एक प्लस का डब्बा होता है जिसपे लिखा होता है AED? एयरपोर्ट पर, हॉस्पिटल में, होटल्स में, रेस्टोरेंट्स में, जैसे फायर एक्सटिंग्विशर होता है वैसे ही एक डब्बा होता है जिसपे ये मशीन लटकी हुई होती है। क्या होता है AED? मैं इसलिए ये लिया प्रश्न यहाँ पर ताकि इसको लोगों को बता सकें, बड़े काम की इंफॉर्मेशन है। ऑटोमेटेड
इलेक्ट्रो डिफिब्रिलेटर कहते डिफिब्रिलेटर कहते हैं उसको। ये डिफिब क्या करता है, बिजली का झटका देता है। तो जो अरेस्ट हो गया अचानक, अगर 10 मिनट के अंदर अंदर, 10 मिनट एक टाइम है उसके पास, इसके बाद हुआ, अगर रिवाइव हुआ तो कोई फायदा नहीं होगा, फिर ऑल एक्सरसाइज इज जस्ट ऑल इन वेन। अदरवाइज 10 मिनट के अंदर अंदर आप वहां से वो मशीन लाकर और उसकी यहां पर जाके सिर्फ बटन दबाया, वन पॉसिबिलिटी, इनफैक्ट 99% पॉसिबिलिटी, वो वापस से रिवर्ट हो जाएगा, पेशेंट उठ के बैठ जाएगा। है ना, पुरानी फिल्मों में भी नहीं देखा होगा तो मिस्टर बीन के किसी शो में देखा होगा, बिजली का झटका लगा और वो खड़ा हो गया। तो मसाज से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है ऑटोमेटेड इलेक्ट्रिक डिफिब्रिलेटर, क्योंकि जो हृदय है ना, देखो मेरे इस हाथ को गौर से देखना, ये हमारे हृदय का काम है, 1 2, ये हृदय चल रहा है। जैसे ही हार्ट अटैक हो रहा होता है तो क्या करता है, ये ऐसे करने लग जाता है, ये इसको कहते हैं फिब्रिलेशन। अब ये ब्लड पहुंच नहीं रहा ब्रेन में, हमारा वाइटल ऑर्गन क्या है, ब्रेन। अगर 10 मिनट तक हमारे ब्रेन को रक्त सप्लाई, ब्लड सप्लाई, प्योर ऑक्सीजन नहीं मिले, ब्रेन डेड हो जाता है। अब ब्रेन डेड हो गया तो अब हार्ट को भले ही आप कितना भी मसाज करके रिवाइव कर लो, कितना भी उसको चमका के खड़ा कर लो, कुछ नहीं होगा उसको। फिर उसके बाद में वो बच तो जाएगा लेकिन वो कोमा में पड़ा रहेगा। और ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि एक पेशेंट का ब्रेन डेड हो गया और वो पेशेंट रिवाइव हो गया तो कई महीनों तक कोमा की स्थिति में अपने घर पर ऐसे ही वेजिटेटिव लाइफ को जीता है। इसको हम कहते हैं कि भाई वियान प्राण तो आप ले आए, उदान प्राण का क्या, अब उदान प्राण डिसोसिएट हो गया, चला गया वो, अभी अब वो वापस नहीं आएगा। तो वहां पर बचाने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे पहले अगल बगल में देखो, अगर आपको एईडी दिख जाए, इमीडिएट गो फॉर दैट, है ना, रादर मसाजिंग द चेस्ट, जस्ट इमीडिएटली गो एंड गेट द एईडी। और नहीं तो एम्बुलेंस बुलाओ, कुछ भी करो, आप हल्का मसाज दे सकते हो, नहीं तो कई बार लोग मसाज चक्कर में रिब तोड़ देते हैं, तो ये भी कर सकते हो कि कॉल इमीडिएटली एनीबॉडी। जैसे फ्लाइट में कुछ भी प्रॉब्लम होता है तो एयर होस्टेस सबसे पहले बोलती है कि यहाँ पे डॉक्टर कौन है, जिन्होंने ट्रेनिंग ले रखी है, प्लीज कम। हमारे यहाँ पर लेमैन भी पहुंच जाते हैं, हमने भी ट्रेनिंग लिया, और वो जो हो सकता है कि वो बिगाड़ दे उस मामले को। इसलिए कभी भी भीड़ इकट्ठी नहीं होने देना चाहिए ऐसे केसेस में। भीड़ साइड, केवल और केवल वेल एजुकेटेड या जो पढ़ चुके हैं या जो जानते हैं इस बात को। मैं फिर बता रहा हूं, हमारे रूटीन में होता है ऐसे, कार्डियक में कई पेशेंट्स होते हैं जो इमीडिएटली जाते हैं और इमीडिएटली रिवाइव होते हैं, जस्ट बिकॉज कि उनके आसपास इतनी ट्रेन टीम रहती है कि उनको इमीडिएट रिवाइव कर लेती है। तो एईडी डिवाइस एक ऐसी चीज थी जब उसको बचाया जा सकता था, क्योंकि इतने बड़े शो में फायर एक्सटिंग्विशर और एईडी डिवाइस एक वो बेसिक नीड है जो गवर्नमेंट रखती है कि भैया ये होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। तो क्लियर हुआ ना, कार्डियक अरेस्ट, हार्ट अटैक एंड हार्ट फेलियर, इन तीनों में डिफरेंस। प्रोसीड फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन। मेरे पास अभी एक रिव्यू आया है कि डॉक्टर साहब आपकी बातें सुनने के बाद में मेरा दिल ज्यादा जोर से धड़कने लगा है। तो मैं सभी दर्शकों से ये निवेदन कर दूं कि हर चीज मेरे साथ ही होगी, ये कोई जरूरी नहीं है। मैं आज यहां बैठा हूं किसी और को बचाने की गुर सीखने के लिए। आप ये बात ध्यान से सुन लें कि हर घटना मेरे साथ घटेगी, ये कोई जरूरी नहीं है। मैं आज यहां बैठा हूं ताकि भविष्य में मैं किसी की प्राण बचा सकूं। बस ये माला फेरते रहें, है ना। देखो धड़क तो मेरा भी रहा है, सच सच में बताऊं बात आपको, लेकिन वो इसलिए धड़क रहा है क्योंकि कई दिनों से धड़का ही नहीं था। तो उसको मौका मिले धड़कने का, तो उसे धड़कने दीजिए। सही मात्रा में ऑक्सीजन ब्रेन में जा रही है, आपको भविष्य में किसी घटना के लिए, किसी की मदद के लिए तैयार किया जा रहा है। प्लीज इसको ऐसे लीजिए, राइट। एक और चीज इसमें ऐड करते हैं, अगर आपका दिल के डॉक्टर की बात सुन के दिल धड़क रहा है तो एक साइकेट्रिस्ट की बात सुन के क्या होगा। मैं बुलाने वाला हूँ साइकेट्रिस्ट या को। फिर किसी गायनेकोलॉजिस्ट या यूरोलॉजिस्ट की बात को सुन के क्या होगा। तो ये सामान्य है हमारे साथ, हम हमेशा अपने साथ बायस्ड होते हैं। ये कोई नई बात नहीं है ना। इसको लेकर के इतना परेशान ना हो। और हो सकता है मेरा आपसे ज्यादा तेज धड़क रहा हो, लेकिन मुझे तो मॉडरेट करना है, तो मुझे तो मॉडरेट करना पड़ेगा। तो प्लीज रिलैक्स। अच्छा, हम इसको थोड़ा लाइटर मोड में लेके जाते हैं
हृदय की धड़कन अनियमित और धीमी भी हो सकती है। क्या ये सामान्य बात है या वास्तव में किसी डॉक्टर से मिलना चाहिए? हाँ, हृदय की धड़कन के बारे में समझते हैं थोड़ा सा। हृदय की धड़कन 55 से 110 ये रेंज है, नॉर्मल रेंज है। 55 टू 110, ठीक है। इस नॉर्मल रेंज में अगर आप कहीं भी फिट हो तो ठीक है। अच्छा, एक फीचर होता है जिसको हम कहते हैं एएफ, एट्रियल फिब्रिलेशन और फ्लटर। एक ऐसी पोजीशन होती है जिसमें हृदय की धड़कन अनियंत्रित और अनियमित बन सकती है। तो वो वेल्वुलर हार्ट डिजीज के केसेस में कॉमन होता है। जिनके भी हार्ट के वाल्व खराब हो जाएं, 4 वाल्व होते हैं, तो उनमें अगर कोई एक वाल्व गड़बड़ हो गया है तो वो धड़कन अनियंत्रित या अनियमित होगी। उसको चिकित्सक को दिखा के प्रॉपर तरीके से मेडिसिन लेना चाहिए। जो एथलीट्स होते हैं और जो योगी होते हैं, रेगुलर जो पद्म साधना कर रहे हैं, यहाँ अभी बैठे हैं ना 88 89 के 88 लोग बैठे हैं, जो भी रेगुलर पद्म साधना कर रहे हैं, उन सब की हार्ट रेट बिल्कुल बैलेंस्ड होती है। 65 टू 75 के बीच वेरी करती है। अगर आपको लगता है कि मेरी बात एग्जेगरेटेड लग रही है तो गेट अ पल्स ऑक्सीमीटर, बेसिक इंस्ट्रूमेंट होता है ना। ये सबके पास आ ही गया था वैसे तो कोविड में, फिर भी एक बेसिक इंस्ट्रूमेंट है। इससे आप नापेंगे तो आपको पता लग जाएगा कि जो भी साधक हैं, योगी हैं, रेगुलर एक्सरसाइज की जगह प्रॉपर तरीके से आसन और प्राणायाम करते हैं, तो एक एथलीट का और एक योगी का बेस लाइन हार्ट रेट 65 टू 75 वेरी करता है। रेगुलर कैफीन लेने वालों का, चाय, जर्दा, बीड़ी, तंबाकू, अल्कोहल या किसी भी तरह की एडिटिव ड्रग लेने वाले का हार्ट रेट 90 से 110 तक वेरी कर सकता है। ठीक है। तो उसमें क्या करें? तो सबसे पहला काम तो यही है कि जो एडिटिव ड्रग्स आप ले रहे हो उसको बंद करो। और उसको बंद नहीं होता है तो प्रॉपर तरीके से उसको डायग्नोज करके किसी डॉक्टर से उसका ट्रीटमेंट लो कि भाई नहीं छोड़ा जा रहा, हमसे चाय नहीं छोड़ी जा रही, या वट। तो इंपॉर्टेंट क्या है? हार्ट रेट। और इस हार्ट रेट वेरिएबिलिटी के ऊपर भी हमने सुदर्शन क्रिया का एक रिसर्च पेपर किया था जो 2017 में पब्लिश हुआ, और उसमें यही था, those who are regularly practicing meditation and सुदर्शन क्रिया, तो उनकी हार्ट रेट वेरिएबिलिटी और ब्लड प्रेशर में सिग्निफिकेंट चेंज आता है। लेकिन कब? जब रेगुलर प्रैक्टिस करते हैं। ऐसे नहीं कि आज हमने किया अभी बिल्कुल ठीक हूं मैं, ऐसे नहीं। एंड द सेकेंड थिंग, योग कभी भी मेडिसिन का सब्स्टिट्यूट नहीं है। योग जीवन जीने की शैली और जीवन जीने की उत्तम पद्धति है ना। एक आदमी है जो पशुवत जीवन जी रहा है, एक आदमी है जो मनुष्यवत जीवन जी रहा है, और एक व्यक्ति है जो देववत जीवन जी रहा है। तो वो वाला फर्क है, समझे आप? पशुवत जीवन जीने का क्या मतलब? आलसी है, पड़ा है, खाना पीने का आता पता नहीं। अच्छा, इसको ऐसे भी समझ सकते हैं। सपोज आप में से यहाँ जितने लोग बैठे हैं उन्हीं से क्वेश्चन पूछता हूँ, बहुत आसान है, इसमें समझ में आ जाएगा। एक व्यक्ति है, सर्दियों का सीजन में मफलर, टोपी, रजाई, कंबल ओढ़ के घूम रहा है, ठीक है। और एक व्यक्ति दूसरा ऐसा है जो गर्मियों में स्वेटर पहन के घूम रहा है। गर्मियों में, सर्दियों में, सॉरी, गर्मियों में स्वेटर, मफलर, टोपी ये सब पहन के घूम रहा है, और सर्दियों में बनियान में घूम रहा है। आप उसको क्या कहोगे? पागल है, ऐसे थोड़ी होता है। सर्दियों में तो बनियान में घूम रहा है और गर्मियों में मफलर, टोपी, रजाई, कंबल सब कुछ ओढ़ के घूम रहा है। आप उसको पागल कह सकते हो? देखो सबके चेहरे पर स्माइल भी आ गई है सुन के। हाँ, ऐसे थोड़ी होता है। हमारी लाइफ को गौर से देखोगे तो ऐसा हो रहा है। आप सब में से कितने ऐसे लोग हैं जिनके उठने का टाइम फिक्स है? कितने ऐसे लोग हैं जिनका सोने का टाइम फिक्स है? कितने ऐसे लोग हैं जिनका लंच का टाइम फिक्स है? कितने ऐसे लोग हैं जिनके डिनर का टाइम फिक्स है? कितने ऐसे लोग हैं जो सूर्य की गति के हिसाब से, चंद्र की गति के हिसाब से अपना सारा सिस्टम मैनेज करते हैं या चलता है? आपको पता है पतंजलि योग सूत्र का पहला सूत्र क्या है? फर्स्ट सूत्र, फर्स्ट मोस्ट सूत्र, उस वहीं खत्म हो जाता है सारा योग। अथ योगानुशासनम। Yoga is equal to discipline. If you are in discipline, then come to me to learn the yoga. Otherwise, go and learn discipline first. तो डिसिप्लिन इज इक्वल टू योग। तो लाइफ को एक अनुशासनात्मक तरीके से जीना योग कहलाता है, जो जीवन जीने की सबसे उत्तम शैली या उत्तम पद्धति है। उपचार के रूप में इसको लेना गलत है। क्यों? क्योंकि 4 तरह के प्रिवेंशन होते हैं किसी भी बीमारी के। पहला होता है प्राइमोर्डियल प्रिवेंशन, यानी बीमारी को होने से पहले रोक लेना। फिर होता है प्राइमरी प्रिवेंशन, जैसे किसी के घर में डायबिटीज की हिस्ट्री है, हार्ट अटैक की हिस्ट्री है, तो उसी लेवल पर उसको, भाई हमको पता है कि भाई हाँ दादाजी को इसके हुआ था, इसके ताऊजी को भी हो रखा है, इसके पिताजी को भी हो रखा है, तो उसको हम कह सकते हैं कि भाई जीवन में इन 4-5 चीजों से दूर रहो ताकि तुम्हारा क्वालिटी ऑफ लाइफ ठीक रहे।
है ना। तो इसको हम कहते हैं प्राइमरी प्रिवेंशन। फिर होता है सेकेंडरी प्रिवेंशन। अब बीमारी हो चुकी है, बीमारी ऑलरेडी आपकी रनिंग है, उस स्थिति में चिकित्सक के पास जाओ, प्रॉपर सलाह लो, प्रॉपर दवाई लो, तो हम कहते हैं प्रिवेंटिव लेवल पर हो, सेकेंडरी प्रिवेंशन। और ये सब हो गया, बीमारी भी हो गई, दवा भी ले रहा हूं, सब कुछ ठीक चल रहा है, अब गड़बड़ हो गई तो होता है टर्शरी प्रिवेंशन। नाउ एडमिट इन हॉस्पिटल, टेक ट्रीटमेंट। तो ये एक लेवल है मैनेजमेंट का। तो योग क्या है, बेसिकली प्राइमोडियल एंड प्राइमरी प्रिवेंशन के लेवल पर हमारे जीवन को उत्तम पद्धति से जीने में हेल्प करता है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि आप दवा को सब्स्टिट्यूट करके और इसको काम में लेने लग जाओ, कि नहीं मैं तो दवा तो लूंगा नहीं, ऐसे ही बीपी को ठीक करके मानूंगा, रोज बाएं नासिका से और दाएं नासिका से सांस को खींच खांच करके कुछ तो मैं ऐसा नया चीज निकाल ही लूंगा। नहीं, है ना, मैं इसकी सलाह नहीं देता हूं। मैं एक ही चीज की सलाह देता हूं, लगातार योगाभ्यास अनुशासित तरीके से करते तो शायद बीमार ही ना पड़ते, पहली बात। फिर भी अगर आप बीमार पड़ गए हो और जीवन एक प्रॉपर अनुशासित तरीके से चल ही रहा है, तो देखो, हमारा शरीर बुढ़ापे और मृत्यु के अधीन है, मरोगे भी और बूढ़े भी होगे। तो जो बीमारी हो चुकी है, बेटर टू गेट प्रॉपर ओपिनियन एंड प्रॉपर मेडिसिन। आप एक घर में रह रहे हो 65 साल से, एक कल्पना करते हैं आप एक घर में रह रहे हो 65 साल से। अब इस घर की दीवारें चरमरा गई हैं, खिड़कियां आवाज करती है, छत भी गिरने लगी है, तो आप क्या करोगे? रिपेयर वर्क करोगे कि नहीं करोगे? या आप कहोगे कि नहीं नहीं नहीं, मैं तो इस खंडहर के साथ ही रहूंगा? तो मूर्ख हो। तो बेटर है रिपेयर वर्क। तो ये मेडिसिन क्या करती है, आपके इस 65 साल के घर को रिपेयर वर्क का काम करती है, ताकि आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ ठीक चले। क्वालिटी ऑफ लाइफ समझते हो? एक व्यक्ति घसीट रहा है जीवन को, एक व्यक्ति उत्तम जीवन जी रहा है। उत्तम क्यों जी रहा है? क्योंकि अपनी क्वालिटी ऑफ लाइफ को वेल मैनेज करता है, योग के माध्यम से, उपचार के माध्यम से, आयुर्वेद के माध्यम से, सारे माध्यमों को मिला के अपने जीवन को बेस्ट कर रहा है। दैट इज सिंपल। तो इसलिए गेट ऑलवेज बेस्ट ओपिनियन फॉर एवरीथिंग। योग सीखना है, बेस्ट प्लेस। मेडिसिन चाहिए, बेस्ट प्लेस। हर जगह पर प्रॉपर ओपिनियन। फिर भी साहब आपको तो लगता है नहीं 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 नहीं, गड़बड़ है गड़बड़ है, ऑलवेज गेट सेकंड ओपिनियन। बड़ा आसान है, आजकल तो कोई दिक्कत नहीं है, गो एंड गेट सेकंड ओपिनियन। फिर भी कंफ्यूज हो, गो एंड गेट थर्ड ओपिनियन। तो हार्ट रेट के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है 55 to 110 नॉर्मल रेंज। और एथलीट हो तो आपकी कम रहेगी, और नशेड़ी हो तो ज्यादा रहेगी, एंजाइटी है तो ज्यादा रहेगी। वंडरफुल। और वैसे तो प्रश्न अभी भी बहुत सारे हैं, लेकिन वो इन डेप्थ एनालिसिस है। पर मैं एक सामान्य प्रश्न पूछता हूं कि अभी मेरा हृदय सही है, अभी मुझे कोई परेशानी नहीं है, मैं ऐसा क्या करूं? योग तो आपने बता ही दिया, सुदर्शन क्रिया आपने बता ही दी, इसके अलावा मेरा दिनचर्या कैसी होनी चाहिए जिससे मैं अपने हृदय को लंबे समय तक स्वस्थ रख सकूं? अच्छा, सभी लोगों को आप में पता है ब्रह्म मुहूर्त किसको कहते हैं? व्हाट इज ब्रह्म मुहूर्त? है ना, सनराइज सबको पता है, सनराइज। जो लोग सूर्योदय से पहले उठते हैं, जिनका भी डेली रूटीन है सूर्योदय से पहले उठने का और ब्रह्म मुहूर्त में उठने का, मेरा यकीन जानो, वो स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से सर्वोत्तम है। क्या है बेसिकली स्वास्थ्य की परिभाषा? अभी तो इतना अपन ने लेक्चर दिया, इतना लंबा सेशन हो गया, लगभग घंटा भर होने आया, अभी तक हमने बात तो करी नहीं कि व्हाट इज हेल्थ। बेसिकली व्हाट इज हेल्थ? स्वास्थ्य को अगर आप योग वशिष्ठ की लैंग्वेज में बात करो, तो एक सुंदर शब्द महर्षि वशिष्ठ ने श्री राम को कहा, स्व स्थितः इति स्वस्थ। जो स्व में स्थित है, सेल्फ रिपोज्ड है, वही स्वस्थ है। इसी को फिर अब वर्तमान में डब्ल्यूएचओ ने यूं का यूं इनकॉर्पोरेट किया, फिजिकल, मेंटल, सोशल एंड स्पिरिचुअल वेलबींग। 4 वेलबींग बताए, फिजिकल, मेंटल, सोशल एंड स्पिरिचुअल। खाली फिजिकल हेल्थ के बारे में बात नहीं करी। अगर डब्ल्यूएचओ होता तो कह देता साहब फिजिकली हेल्दी मीन्स हेल्दी। नो, फिजिकल हेल्थ का मायने होता है आपके वाइटल पैरामीटर्स नॉर्मल होने चाहिए। क्या? हार्ट रेट, ब्लड प्रेशर, रेस्पिरेटरी रेट और टेम्परेचर। ये ठीक है तो हम कह सकते हैं कि फिजिकली हेल्दी है। दूसरा मेंटल है, अपने बारे में जानना, हु एम आई, या मेरे किसी भी कृत्य से समाज में क्या फर्क पड़ सकता है। स्व और समाज का ज्ञान मेंटल हेल्थ में आता है।
उसके बाद में आता है सोसाइटी या सोशल हेल्थ, कि आपसी पर्सनल इंटरपर्सनल रिलेशनशिप कैसे, घर में झगड़ते हो कि नहीं, बाहर झगड़ते हो कि नहीं, या हर जगह झगड़ा ही रखते हो, हमेशा गुस्सा रखते हो। एंड द फोर्थ इज स्पिरिचुअल, दैट इज फेथ। अब हम लेते हैं वापस इन सारी बातों की, हम इन चारों का कंपाइलेशन करके कुछ ऐसा करें कि हम हृदय को स्वस्थ रखें। और मैं बात करता हूं न केवल हृदय को स्वस्थ रखें, हम पूरा ग्रॉसली स्वस्थ रहें। स्वास्थ्य मेरे हिसाब से न केवल शरीर का अंग है, न केवल हृदय का अंग है, इस हृदय को धड़कने की प्रेरणा देने वाला कोई तो है। कोई तो है जो इस हृदय को धड़कने की प्रेरणा देता रहता है ताउम्र। तो क्यों ना हम उसी पे काम करें। ठीक है, कैसे करें साहब? तो उसका नाम होता है कॉन्शियसनेस। यही कॉन्शियसनेस आपके इम्यून सिस्टम को, यही कॉन्शियसनेस आपके माइंड को, यही कॉन्शियसनेस आपकी देह को, यही कॉन्शियसनेस आपके सारे सिस्टम को चलाने के लिए इंपॉर्टेंट है। अब इसके तो थोड़ा सा वाइस वर्सा है, उलट के भी लेते हैं। क्या आपने कभी किसी मुर्दे को या डेड बॉडी को गुस्से में देखा है? हैव यू एवर सीन एनी डेड बॉडी इन एंजाइटी मैनर और एंगर? हो नहीं सकता। एक मुर्दा गुस्सा कर सकता है क्या? नहीं। या एक मुर्दा कभी चिंतित हो सकता है? नहीं। या कभी एक किसी मुर्दे का मुंह खुला और आपने बढ़िया सा लड्डू लाके दिया उसके मुंह में डाल के कि क्या बढ़िया इसको टेस्ट लगेगा, चलो इसको कुछ तो खिलाएं बढ़िया सा? नहीं। क्यों? क्योंकि यह शरीर बिना प्राण के मुर्दा है। अब मेरी बात क्लियर हुई? यह शरीर बिना प्राण के मुर्दा है। तो अब हमको किस पे काम करना है? प्राण पे। और हृदय को स्वस्थ रखने के लिए फिर कहां पे लेके आना है? वापस वियान प्राण पे। और वियान प्राण को कैसे सेटल कर सकते हो? आप सब लोगों ने किया है ना? ये किया है कि नहीं किया है? नहीं किया तो जाके कर लो। पहली चीज तो यही है कि सबसे पहला सूर्योदय से पहले उठ के अपना योग, योग जिसके अंदर हमारा आता है आसन, प्राणायाम, ध्यान और क्रिया, इन चारों को इनकॉर्पोरेट करो। कुछ लोग अभी बेसिक कोर्स करके बैठे हैं, तो सुन लो, समझ लो, आगे बढ़ जाओ, है ना? एडवांस कोर्स कर लो, सहज समाधि कर लो, संयम साधना सीख लो, तो थोड़ा आगे बढ़ो। देन फूड स्टाइल और भोजन का पैटर्न। भोजन गर्मियों में गर्मियों के हिसाब से खाओ, सर्दियों में सर्दियों के हिसाब से खाओ, वर्षा ऋतु में वर्षा ऋतु के हिसाब से खाओ। एक ह्यूमन बीइंग ही तो है जो सारे नियम तोड़ लेता है। जब मर्जी पड़ा, जो मर्जी पड़ा, जैसे मर्जी पड़ा, खा लिया। न आहार विहार, युक्त आहार विहार से, देखो कितना सुंदर बोला भगवत गीता में। मैं फिर इसी बात को वापस दोहरा रहा हूं कि हमारी जीवन शैली की पद्धति को अगर हम उत्तम रखते हैं, नॉट अवर हार्ट इंक्लूडिंग आवर होल एग्जिस्टेंस, एवरीथिंग विल बी वर्किंग फाइन। बहुत बढ़िया तरीके से काम होगा आपका डाइजेस्टिव सिस्टम, कार्डियोवास्कुलर सिस्टम, नर्वस सिस्टम, सब कुछ ठीक चलेगा। तो पहला किसी खूंटे को पकड़ना है, एक ही खूंटे को पकड़ना है, अनुशासन, डिसिप्लिन। और डिसिप्लिन कैसे पकड़ूं? तो सिंपल सा है, मॉर्निंग साधना में ज्वाइन करो। अपने जितने भी आर्ट ऑफ लिविंग टीचर्स हैं, त्रिपुरारी भैया हैं और बहुत सारे जितने भी लोग हैं जो भी मॉर्निंग साधना के सेशन लेते हैं, मैं एक ही रिकमेंड करता हूँ, जस्ट ज्वाइन दैम। आपका अनुशासन अपने आप बन जाएगा। जैसे एक ये सुंदर सा अपना जो आज एपिसोड चल रहा है संडे का, यूट्यूब पर अपना भी कार्डियक का एक रखता हूं मैं, 9 से 9:15 9:30 का प्राइम टाइम पे यूट्यूब पे मिलेगा आपको। आज का टॉपिक उसमें वेरिकोज वेन। बहुत सारे लोग रेगुलर टॉपिक बताते रहते हैं कि कुछ तो टॉपिक नया नया लेते रहो, तो आप वो भी सुन सकते हो। लेकिन यस, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग मैं फिर कह रहा हूं, आप ब्रेकफास्ट नहीं खाओगे चल जाएगा, लंच नहीं करोगे चल जाएगा, डिनर नहीं करोगे चल जाएगा, लेकिन जिस दिन आपने साधना नहीं करी ना, उस दिन आपको ये होना चाहिए कि आज मेरे कॉन्शियसनेस का लंच रह गया, आज मेरी कॉन्शियसनेस का डिनर रह गया। तो एक संकल्प लेके इसी इसी सेशन से आज ही संकल्प लो कि द वेरी नेक्स्ट मोमेंट मैं ब्रेकफास्ट तभी करूंगा जब मेरी साधना हो जाएगी, बस। उसके बाद आपको हृदय के बारे में सोचने की चिंता छोड़ दो, या मेरा हृदय कैसा रहेगा, ठीक है कि नहीं है, कहीं कोई प्रॉब्लम में तो नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। फिर भी अगर है, मान लो एक पल के लिए माना, तो एक रूटीन चेकअप होता है। उस रूटीन चेकअप में होता है बेस लाइन ईसीजी, सेकंड होता है 2D इको, एंड थर्ड होता है सीटी कॉर्नरी। ये तीन बेस लाइन इन्वेस्टिगेशंस अगर आपके नॉर्मल है, अगले 10 साल के लिए आप अपने आप को बीमारी से मुक्त मान सकते हैं कि हाँ ठीक हूं मैं। अगर आपका ईसीजी, आपका 2D इको और सीटी कॉर्नरी, ये तीन टेस्ट आपके बिल्कुल ठीक आ रहे हैं, साथ में अगर आपका लिपिड प्रोफाइल भी उसको मैच करता है कि एवरीथिंग इज फाइन, तो आप बिल्कुल नॉर्मल है। अदरवाइज आपका कैड्रेट स्कोर में ऊंचा नीचा है या मामूली सा कुछ चेंजेस है, तो इमीडिएटली यू कैन प्रोफाइलेक्टिकली स्टार्ट मेडिसिन। आप प्रोफाइलेक्टिकली मेडिसिन शुरू कर सकते हैं, ताकि फ्यूचर में एयम दुखम अनागतम, जो बीमारी आने वाली है उससे आप प्रोटेक्ट कर सकते हैं अपने आप को। ठीक है?
तो हार्ट को ठीक रखने के लिए पहला है दिनचर्या, स्ट्रेस फ्री लाइफ, तीसरा है बढ़िया भोजन, और भोजन की एक नियमितता और एक निरंतरता, एंड द फोर्थ थिंग जो इसमें ऐड कर सकते हैं, बढ़िया नींद। अच्छी नींद भी बहुत जरूरी है स्ट्रेस फ्री लाइफ के लिए। बढ़िया और उत्तम वाले अपना एक कोर्स होता है डीप स्लीप एंड एंजाइटी रिलीफ प्रोग्राम, वो भी अपन पढ़ाते हैं। कई बार कोर्सेज लेता हूं मैं, डीप स्लीप और एंजाइटी रिलीफ, आप भी लेते होंगे। तो ये जरूरी है, जिन लोगों को अभी भी प्रॉब्लम है, नींद नहीं आ रही है या एंजाइटी रहती है, दे मस्ट गो विद दैट, उनको जाना चाहिए उस प्रोग्राम में, सो दैट दे कैन स्लीप वेल। अच्छी नींद में हमारा पूरा शरीर रिजुविनेट होता है, वापस से नया बनता है, एंड यू गेट एनर्जी जस्ट लाइक मेडिटेशन। अच्छे ध्यान से और अच्छी नींद से, दोनों स्थितियों में यू गेट एनर्जी। जैसे आप थक गए हो कोई काम करते करते, तो आपकी स्थिति क्या होती है, एक झपकी ले लो, immediately you recharge, so that the same thing, the same way। ठीक है, चलिए। कुछ क्वेश्चन ऐसे आए हैं जैसे मुझे लगता है कि उन्हें यहाँ डिस्कस करना ठीक नहीं, आई वाज ट्रीटेड विद ब्रेन टॉल प्रोसीजर आफ्टर नोइंग। तो इसके लिए आप बेहतर होगा कि आप अपने ही डॉक्टर से संपर्क करें, क्योंकि उनके पास आपका सारा रिकॉर्ड है। हाँ, ये जनरल सेशन है, ज्यादा बेटर जनरल सेशन है ये। हाँ, तो आप इस तरीके के प्रश्न पूछ करके और कंफ्यूज ना हो, अपने अपने ही चिकित्सक महोदय से मिलिए। एक प्रश्न है जो सामान्य सा दिखाई दे रहा है कि माय टोटल कोलेस्ट्रॉल इज 271.32, एलडीएल इज 169, नॉन एचडीएल इज 197, आई हैव नो अदर सिम्टम्स, इसे क्लैरिफाई करें। कोलेस्ट्रॉल का बढ़ना सिम्टम के साथ में जरूरी नहीं है कि हो। कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ होने का एक अर्थ यह होता है कि बॉडी में फैट स्टार्ट है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि आपको कोई कार्डियक सिम्टम होगा। अब इसमें करना क्या है, ये इंपॉर्टेंट है। अगर कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया है तो सबसे पहले फैट फ्री डाइट, नंबर 1 फैट फ्री डाइट। फैट में घी और तेल दोनों है। कुछ लोग पूछते साहब घी ठीक है क्या, तेल ठीक है क्या, मूंगफली का खाऊं कि सरसों का खाऊं, डिस्कशन हटा ही देते हैं। फैट फ्री डाइट, ठीक है, नंबर 1। अपने एक आयुर्वेदिक कुकिंग कोर्स होता है, उसमें से कहीं से भी सीख लो फैट फ्री डाइट कैसे बनती है, बहुत बढ़िया कोर्स है, सीख सकते हैं। नंबर 2, फैट फ्री डाइट के बाद 3 महीने रेगुलर अपना एक शेड्यूल बनाओ खाने का, और उस शेड्यूल के साथ आप उसको रेगुलर अपना रखो। फिर भी अगर आपका लिपिड प्रोफाइल डिरेंज आता है, स्टार्ट मेडिसिन, देन एंटी लिपिडेमिक ड्रग्स आप अपने कंसल्टेंट से बात करके स्टार्ट कर सकते हैं। मिनिमम डोज में यू कैन स्टार्ट विद, सो दैट वो एक लिपिड पर चेक पॉइंट हो जाए। अगर आपको लगता है नहीं नहीं मेरे को दवा शुरू नहीं करनी, तो ऐसी भ्रांति दिमाग से निकाल लो। हाई लेवल ऑफ कोलेस्ट्रॉल कैन डिरेंज आफ्टर अ सर्टेन टाइम। एक चीज जो आपके शरीर में हो चुकी है, वो अगर रिवर्स नहीं हो रही, तो एक सर्टेन टाइम के बाद वो प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है। तो ज्यादा बेटर है गो एंड गेट कंसल्टेंट ओपिनियन कि भाई अब मेरे को शुरू करना है क्या, 3 महीने हो चुके हैं, 6 महीने हो चुके हैं, 3 to 6 मंथ अगर आपने अपना रेगुलर डाइट चार्ट मेंटेन किया है, रेगुलर अपने योगा रेगुलर कर रहे हैं, देन अगेन कह रहा हूं, योगा इज नॉट सब्स्टिट्यूट, बट अगर कर रहे हैं और फिर भी आपका लिपिड प्रोफाइल डिरेंज है, गो एंड गेट मेडिसिन। आयुर्वेद में भी मेडिसिन आती हैं, बिल्कुल आती हैं, अपनी आती है इंकोलिन, और बहुत सारी ऐसी दवाएं हैं जो अपने शेषी आयुर्वेदा में आती हैं। बट स्टिल मैं कह रहा हूं, उन दवाओं को भी लेके देख लो 3 महीने तक। अगर आपको ठीक नहीं रहता है, लिपिड प्रोफाइल डिरेंज है, तो स्टार्ट एंटी लिपिडेमिक ड्रग्स। ओके, एक प्रश्न आया है, उसका जवाब मैं ही दे देता हूँ। इज आयुर्वेदिक मेडिसिन इफेक्टिव टू कंट्रोल कोलेस्ट्रॉल? हम आयुर्वेदिक वैद्य जी को भी बुला रहे हैं, बेहतर होगा हम उनसे ही ये प्रश्न पूछें। एक प्रश्न मेरे पास सामान्य सा आया है कि मेरा जो ब्लड प्रेशर है वो 100-60 रहता है और मेरी पल्स रेट 110 रहती है। वैसे तो डॉक्टर साहब ने एकदम क्लियर कर दिया है पल्स रेट के बारे में, 110 है तो सामान्य ही है। फिर भी डॉक्टर साहब क्या कहते हैं, हम जरा सुनते हैं। देखो, अपना कार्डियक आउटपुट 2 चीजों पर मेंटेन रहता है। एक बेसिक मैथमेटिक्स है, अर्थमेटिक कहते हैं, कार्डियक आउटपुट इज इक्वल टू हार्ट रेट इनटू ब्लड प्रेशर। एक समीकरण है, कार्डियक आउटपुट इज इक्वल टू हार्ट रेट इनटू ब्लड प्रेशर। बीपी हाई होगा तो हार्ट रेट कम होगी, हार्ट रेट ज्यादा होगी तो बीपी लो होगा, लेकिन कार्डियक आउटपुट मेंटेन रहेगा। ठीक है, जैसे आपकी हार्ट रेट 110 है तो बीपी 100 है। अगर आप कोई मेडिसिन से अपनी हार्ट रेट को कम करेंगे तो आपका बीपी बढ़ जाएगा। तो कार्डियक आउटपुट मेंटेन रहना चाहिए। हार्ट रेट और बीपी से की केमिस्ट्री कुछ भी हो, कार्डियक आउटपुट आपका मेंटेन रहना है। व्हाट इज आउटपुट? कार्डियक आउटपुट का मतलब होता है एक बार का जो दिल धड़का, वो आपके गुर्दों को, आपके लीवर को, आपके ब्रेन को, आपके फेफड़ों को और आपके इस पूरे सिस्टम को प्रॉपर ऑक्सीजनेटेड ब्लड पहुंचा रहा है कि नहीं, दैट इज बेसिकली आउटपुट। तो अगर
इसी स्थिति में मान लो किसी का ब्लड प्रेशर 90 भी है, लेकिन अगर उसको यूरिन आउटपुट ठीक आ रहा है, पेशाब ठीक आ रहा है, कोई कंप्लेन नहीं है, तो उसके लिए वो ब्लड प्रेशर नॉर्मल है। जनरली जो लोग दुबले पतले होते हैं, जो लोग थोड़ा सा कैचैक्सिक होते हैं, वीक होते हैं, उनका ब्लड प्रेशर 90-60 भी आ सकता है। सो व्हाट, कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर उनका यूरिन आउटपुट ठीक है, उनको भूख बराबर लग रही है, उनका जीआई सिस्टम ठीक है, उनका ब्रेन ठीक है, एवरीथिंग इज गुड, नो प्रॉब्लम एट ऑल। ओके। एक प्रश्न है जो मैं सभी दर्शकों से निवेदन करूंगा कि एक पेन पेपर ले लें। मुझसे प्रश्न पूछा गया है कि डॉक्टर मोहित के यूट्यूब चैनल के बारे में बताएं। तो डॉक्टर साहब एक बार जरा अपने यूट्यूब का जो एल्गोरिदम है वो बोल दीजिए। जिनकी भी इच्छा वहां जाकर इनको सुनने की है, अपनी नोट पैड हाथ में रखें और लिख लें प्लीज। डॉक्टर साहब। बहुत इजी है, गूगल पे नाम डालना है खाली, डॉक्टर मोहित शर्मा, बस इतने में आपका आ जाएगा। कार्डियक सर्जन ऑब्लिक आर्ट ऑफ लिविंग टीचर करके आपको @डॉक्टर मोहित शर्मा करके भी ढूंढ सकते हैं। जैसे आप यूट्यूब पर जाएंगे तो वहां पर है ना प्लेलिस्ट बनी हुई है, उसमें एक प्लेलिस्ट है हेल्दी हार्ट। उस हेल्दी हार्ट में ये सेशंस होंगे। अदरवाइज उस प्लेलिस्ट में आपको भगवत गीता, योग वशिष्ठ, अष्टावक्र गीता, नारद भक्ति सूत्र और ये सब आपको पतंजलि योग सूत्र, इन सब के ऊपर भी डिस्कशंस मिलेंगे। तो फिलहाल संडे का हमारा जो समय रहता है यूट्यूब पर, वो हम करते हैं कार्डियक डिस्कशंस, एंड अदर वे अराउंड डेली इवनिंग 9 to 9:15, 9 से 9:15 का हमारा प्राइम टाइम रहता है, रिलेटेड टू ऑल आवर एंशियंट टेक्स्ट, जो हमारे वर्तमान जीवन को कितना प्रभावित करते हैं। आप सब लोगों ने सुना है भगवत गीता के बारे में, बहुत सुंदरतम ज्ञान है। गुरुदेव ने इसके बारे में जो बोला है हम उसी के ऊपर बात करते हैं। अष्टावक्र गीता के बारे में बात करते हैं, नारद भक्ति सूत्र के बारे में, ये सब ऑलरेडी हो चुके हैं। 200 250 एपिसोड सबको आपको उस प्ले लिस्ट में मिलेंगे। उसी एक प्ले लिस्ट में आपको खाली ढूंढना है हेल्दी हार्ट। तो जैसे आप हेल्दी हार्ट पे आएंगे तो उसके अंदर अभी जैसे आज शायद 10th एपिसोड है, जो 10वें एपिसोड में हम बात करेंगे वेरिकोज वेन की। इससे पहले हम सारे वेल्वुलर हार्ट डिजीज, क्योंकि हार्ट इज ए वेरी वास्ट सब्जेक्ट, एक एपिसोड में हम बहुत सारी चीजों को टच नहीं कर पाए हैं। जैसे इस पूरे सेक्शन में जो मैं टच नहीं कर पाया उनमें से एक है वेल्वुलर हार्ट डिजीज, हार्ट की वाल्व की बीमारियां, जो हमारे पश्चिमी राजस्थान में और पूरे राजस्थान में इनफैक्ट बड़ी प्रीवलेंट है। र्यूमेटिक हार्ट डिजीज जिसको कहते हैं। तो उसमें क्या क्या ऑप्शंस होते हैं, क्या क्या हम उसमें सर्जरी प्लान कर सकते हैं, किस उम्र में क्या वाल्व लगाना चाहिए, क्या उसके लिए हमें सामान्य जानकारी, तो इसके लिए हम फिर कभी और एपिसोड करेंगे, तो तब हम उसके बारे में बात करें। ऐसे ही कंजेनाइटल हार्ट डिजीज, छोटे बच्चे जो अभी अभी पैदा हुए हैं उनके हृदय रोग हो गया, अब उनके ऐसा क्या हो गया कि अभी पैदा हुआ तो दिल में छेद है और बड़ी बड़ी बीमारियां हैं, तो हम क्या कर सकते हैं उसके बारे में। उसके बारे में भी एक टॉपिक बनता है डिस्कशन का कि कंजेनाइटल हार्ट डिजीज, तो वो फिर हम और कभी उसको लेंगे। अभी हमारी जो ज्यादातर सामान्य जानकारियां जो हम कलेक्ट कर सकते थे, जिन पे हम बात कर सकते थे, वो हमने बात की। तो मैं दर्शकों को बता दूं कि ये 25% ही हुआ है ये एपिसोड। इसमें बहुत सारी चीजें हमने समय की कमी के कारण छोड़ दी है। और निश्चिंत रहें, डॉक्टर मोहित हमेशा हमारे लिए अवेलेबल हैं। और यही नहीं, अभी इनके लिए एक और एपिसोड डिजाइन हो रहा है, विच योगा इज बेटर फॉर विच डिजीज। तो उसकी भी डिजाइनिंग हो जाएगी, तब भी हम आपको बुलाएंगे। और ये जो भी बचा है पूरा शल्य चिकित्सा यानी ऑपरेशन, जिसमें हमारे डॉक्टर साहब माहिर हैं, उस पर तो मैंने अभी चर्चा की नहीं क्योंकि सबके अभी ऑपरेट नहीं हुए हैं। तो ठीक है, बिना ऑपरेशन वाली जेंट्री थी इसलिए बिना ऑपरेशन वाले सवाल ले लिए। तो जब समय ऑपरेटेड हार्ट वाले लोग आएंगे तो हम उन पर भी चर्चा करेंगे। बट मैं ये कह सकता हूं कि सच में कुछ नहीं हुआ। जो YouTube देखकर, गूगल देखकर के अपनी जान जोखिम में डाल रहे हैं, कृपया इस एपिसोड को 2 बार, 3 बार, 4 बार जरूर देखें, है ना। ये आप ध्यान रखें। YouTube पे जो मैंने भी पढ़ा है, मेरा भी क्या है, बचपन से ही लेफ्ट साइड जो है दर्द करता आ रहा है। तो डॉक्टर हमेशा बोलता है कि यदि यही दर्द राइट होता ना तो तुझे कभी चिंता ही नहीं होती। अब चूंकि बचपन से हो रहा है इसलिए मुझे कोई चिंता नहीं होती है कि ठीक है, तो मैं जन्म से लेकर के आया हूं। फिर भी मैं इसके ऊपर खूब गूगल पे तफ्तीश किया करता था। मेरे बहुत सारे दोस्त डॉक्टर हैं, उनसे बात किया करता था। तो यही कहते थे कि तू शायद चाय ज्यादा पीता है, तो तेरा एसिडिक बॉडी है तेरी,
और कई बार लेफ्ट साइड जो है उसकी मसल्स भी वीक होती हैं राइट हैंड साइड की तुलना में, तो भी मस्कुलर पेन हो सकता है। डोंट वरी अबाउट दैट। तो ऐसे करके मैंने तो काफी लंबा समय निकाल लिया है, कृपया आप ना निकालें ऐसा समय। आपको छोटा मोटा भी दर्द हो तो अपने चिकित्सक के पास जरूर जाएं, टेस्ट करवाएं। और मैंने डॉक्टर साहब से अभी निवेदन कर ही रहा हूं कि मोहित मेरा नाम लिख लो एसएमएस हॉस्पिटल में, जो जो टेस्ट जरूरी है वो मैं जल्दी ही करवाने वाला हूं। तो आ जाओ, कभी भी आ जाओ, बुधवार मेरा आउटडोर होता है, आप आ जाओ, सारे टेस्ट करवा देंगे आपके। हाँ, तो पता तो चले और कितने दिन का दिल का खेल बाकी है। पर दिल से मैं धन्यवाद दूंगा आप सभी का, पूरी टीम का और डॉक्टर मोहित का। कितना एलोबरेटेड, मेरा मन नहीं है इसे खत्म करने का, लेकिन धीरे धीरे नॉलेज जाए, धीरे धीरे इंफॉर्मेशन जाए तो यूजफुल होती है। एक साथ पूरी की पूरी इंफॉर्मेशन देना तो एमबीबीएस 5 साल में नहीं होती, 1 साल में ही हो जाती। तो इसलिए हम फिर एक और एपिसोड दिल पर रखेंगे। डॉक्टर साहब को नहीं इनवाइट करेंगे, मेरे तो छोटे भाई जैसे हैं, जबरदस्ती भी बुला सकता हूं, लेकिन चूंकि डॉक्टर हैं तो मैं विनम्र निवेदन करूंगा कि whenever we need second episode on हार्ट, प्लीज डू कम सर। और हमारे दर्शकों को इसके बारे में ज्यादा से ज्यादा जानकारी दें, बहुत जरूरत है। पिछले कुछ समय में ऐसी सूचनाएं पड़ी कि कोई घोड़े पे बैठा था, तोरण मारने से पहले लुढ़क गया, है ना। अब बेचारा वो पढ़ने के बाद में हमें लगा कि हे भगवान, ये कौन सा समय देखना पड़ रहा है। बहुत ही डरावना समय था, है। ऐसे में सावधानी बहुत जरूरी है। अपनी मनगढ़ंत बातों पर ना चलें, गूगल वगैरह पर ना चलें, यूट्यूब वगैरह पर ना चलें। विस्तृत जानकारी लें, रिसर्च जिन डॉक्टरों ने की है उनको फॉलो करें, सड़क छाप डॉक्टरों से बचें। और जो ये पुरानी परंपरा है कि वायु से दर्द हो रहा होगा, गैस से हो रहा होगा, इनको भी थोड़ा सा रिलैक्स दे। जरूरी नहीं है। वो शरीर और था जो बड़े बड़े झटके झेल लिया करता था, आज का शरीर कुछ और है ना। एक ब्रेकअप में तो लोग बियर बार पहुंच जाते हैं, ये हालत है लोगों की। एक ब्रेकअप हो जाए तो बियर बार में बैठे मिल जाते हैं दाढ़ी बढ़ा करके। तो कृपया अपनी मनोस्थिति को समझें, अपनी शारीरिक स्थिति को समझें और डॉक्टर से सही परामर्श लें। अपने जीवन से खिलवाड़ ना करें। आपका जीवन आपके लिए ही नहीं, आपके पीछे परिजनों के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है। वो आपको स्वस्थ और मुस्कुराता हुआ देखना चाहते हैं। यही इस मिशन का मुख्य उद्देश्य है। बहुत बहुत धन्यवाद। एनी फ्यू वर्ड्स डॉक्टर साहब इन द एंड? मेरा एक ही सेंटेंस हर सेशन में रहता है और सबके लिए एक ही मैसेज है। कुछ भी छूट जाए, कुछ भी, है ना, भोजन पानी दिनचर्या कुछ भी छूट जाए, लेकिन अपनी जो रोज का साधना का जो सिस्टम है ना, उसको कभी भी अफेक्ट नहीं होने देना। डू साधना डेली, दैट इज द क्रक्स लाइन ऑफ दैट। क्योंकि न केवल हमारे हार्ट के लिए, पूरे सिस्टम के लिए सबसे अनिवार्य है, क्योंकि हमारा साधना के सिस्टम कंप्लीट है। आसन प्राणायाम क्रिया एंड मेडिटेशन। तो व्हेन डू साधना डेली, बस इस यहाँ इस सेशन में जब भी आप क्विट करें इस लाइव सेशन को, तो ये संकल्प लेके कि बस आज का मैसेज मिल गया कि कुछ भी छूटे, अपने को साधना नहीं छोड़नी। हाँ, तो मैं डॉक्टर मोहित की लाइन के अंदर में एक लाइन और जोड़ देता हूँ। 2003 और 4 के अंदर में डॉक्टर त्रेहान जो हुआ करते थे, एम्स के हेड ऑफ द डिपार्टमेंट हार्ट के, उनका एक इंटरव्यू मैंने पढ़ा था। और उन्होंने इंटरव्यू के दौरान ये बात कही थी कि मैं हर पत्नी से रिक्वेस्ट करूंगा वो अपने पति को तभी चाय दे जब वो प्राणायाम कर चुका हो। यदि उसने प्राणायाम नहीं किया है तो वो पत्नी अपने पति को चाय ना दे। ये 2003 का स्टेटमेंट है डॉक्टर त्रेहान का। और 2025 में डॉक्टर मोहित का सेंटेंस है कि भूखे रह जाना, नाश्ता स्किप कर देना, लंच स्किप कर देना, लेकिन साधना स्किप मत करना। दोनों ही एक ही बातें हैं, दोनों एक ही बातें हैं। कुल मिलाकर बात यह है, ये समय साधना के लिए बना है, मस्ती बाद में कर लेंगे। दैट्स इट। थैंक यू डॉक्टर साहब फॉर ज्वाइनिंग अस।
बहुत ही सुंदर सेशन हुआ। मुझे उम्मीद है काफी लोग इससे प्रभावित होंगे, और मैं तो खुद आ ही रहा हूँ, बुधवार को आने वाला है, 2 दिन ही गैप में है। मेरा नाम वाम लिख लो भाई। हाँ, लिख लिया। तो मैं भी टेस्ट करवा ही लूं, क्या मालूम पढ़ने के बाद किसी का पढ़ा मैंने कि उसके दिल की धड़कन बढ़ गई, तो मैंने कहा ये इतनी हिम्मत वाली तो है जिसने लिख दिया, मैं तो बोल भी नहीं पा रहा था। तो उसको पढ़ने के बाद मुझ में हिम्मत आई तो मैंने बोल दिया। खैर कोई नहीं, ये सब मजाक की बातें हैं। कुछ चीजें निश्चित होती हैं, लेकिन सावधानियां भी जरूरी है। थैंक यू। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव।